Universities like AMU, DU, University of Kashmir, CBSE, and Jaunpur University, Integral University, SCRT, and many more. His thesis, his CV is like a PhD thesis, so it will take a long time. Therefore, I'm just skipping because sir will have to start his session on one of the very important topics, that is inclusive education. With these words, I would like to invite Professor Jasim sir to start the session. Thank you, sir, for accepting our request again and again, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Shakir Sahib. Thank you so much for the wonderful interaction with the participants. And as I was listening that probably this is the last day you were planning about the validity session. So I must thank the entire team of HRDC AMU for constantly inviting me to participate in such sessions, which is always a learning experience for all the participants as well as the speaker, because when we discuss something in this kind of program, then we learn from one another by listening to the experiences shared by the participants. So participatory interaction and discussion is always beneficial for all the participants. So thank you so much. So dear friends, as announced by Dr. Shakir Sahib, that this session is devoted to a particular concept, which is inclusive education. And inclusive education, inclusive society, inclusive environment, inclusive setup, inclusion is the key word in present day scenario at national level as well as international level. Inclusion has become a buzzword basically in all spheres of life. And it is most sought after concept and sought after social activity which may be considered and which are required at all levels of all spheres, whether it is educational sphere or social sphere or a family sphere, but at any, you can think about any sphere, any activity. Inclusion is also required at the family level. So whenever a small family, even a nuclear family, where there may be wife, husband, and 1, 2 or more kids, even then you need to have inclusion in the family. If it is a joint family, inclusion becomes much more important, much more required to make the whole family united. Similarly, at national level, everybody needs to grow and develop. Everybody needs to be educated. Everybody needs to be, to have a quality education. Everyone needs to be given the opportunity to learn a lot and to prosper and to develop and to make his or her life enjoyable, joyful, and entertaining, healthy. For all these things, the whole policy requires to be inclusive in nature. But we all have been experiencing at different levels that when we look at the social structure and the social phenomena, the social process, educational process, we find that in practicality, inclusion is not, observed, not seen to the extent where it should be. And unless and until we create a really inclusive setup, we can't achieve the target of Viksit Bharat 2047, which is the dream of the nation at the present time. भारत को अगर विकसित बनाना है, 2047 का सपना अगर है, तो एक दो आदमी के, एक दो कंपनी के और एक दो पॉलिटिशियंस के और 2-4-10 जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं या किसी पर्टिकुलर सोशल स्ट्रक्चर के, सोशल लेवल के, यू कैन से इकोनॉमिक जो क्रीमी लेयर और हाई क्लास सोसाइटी के डेवलप हो जाने से नहीं। उसके लिए जरूरी है कि हमारे
सामाजिक ढांचे का हर एक लेवल ऊपर उठे, डेवलप करे, ग्रो करे, प्रॉस्पर हो, पूरे हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम बेहतर हो, पूरे हिंदुस्तान की लिटरेसी बहुत अच्छी हो, पूरे हिंदुस्तान का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वो इम्प्रूव करे, पूरे हिंदुस्तान का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो स्कूल एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन का है, वो इम्प्रूव करे, और पूरे हिंदुस्तान का जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है हैप्पीनेस इंडेक्स, वो हैप्पीनेस इंडेक्स इम्प्रूव करे पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे कंट्री के लिए। ये तमाम इंडेक्स अगर आपके ऊपर जाएंगे तभी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, या बढ़ चुका है, या पहुंच चुका है। इसलिए NEP 2020 पूरा फोकस करता है कि हमें अपने एजुकेशन को, मैं अब एजुकेशन की तरफ आता हूँ, हमें एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाना। इसलिए कि अगर आपने एजुकेशन को बना दिया इंक्लूसिव, तो ऑटोमेटिकली बाकी स्फीयर ऑफ सोसाइटी में, बाकी स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज में इंक्लूजन का असर नजर आने लगता है। एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन अगर इंक्लूसिव कर दें तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी इंक्लूसिव होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्लूसिव होगी, डेवलपमेंट भी इंक्लूसिव होगा, ओपनिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक सेक्टर्स भी अपने आप इंक्लूसिव हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने आप इंक्लूसिव हो जाएगा, और तमाम स्फीयर्स आपके इंक्लूसिव हो जाएंगे अगर हमने अपने एजुकेशन को, क्वालिटी एजुकेशन को खास तौर पे ओपन अप कर दिया, इंक्लूसिव बना दिया तो। लेकिन हिंदुस्तान का जो ट्रेंड अगर देखिए आप, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक का पूरा डाटा को अगर आप देखिए, तो लगता है कि हमारे यहाँ इंक्लूजन की ज़रूरत है। अभी हम इंक्लूजन का जो लेवल होना चाहिए वहाँ पहुँचे नहीं। आज भी हिंदुस्तान के गाँव में औरतों की तालीम की हालत बहुत ख़राब है। विमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन आज भी, हालांकि बहुत इम्प्रूव हुआ है। 2024 बिल्कुल बहुत बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया। ये आज से 25 साल पहले का हिंदुस्तान अब नहीं है। इट इज द चेंज इन इंडिया। डाटा देखेंगे तो पता चलेगा। डाटा देखने की जरूरत भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखिए कि लड़कियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है, गर्ल्स का परफॉर्मेंस, विमेन का परफॉर्मेंस। केंद्रीय विद्यालय का आप रिजल्ट देख लीजिए, आप किसी बोर्ड का रिजल्ट देख लीजिए, आप CBSE का रिजल्ट देख लीजिए, आप 10th का, 12th का, तमाम साल यही आ रहा है कि, है ना, गर्ल्स हैव, girls are shining and boys are behind the girls in their performance. ये है, तो ट्रेंड बदल रहा है। ये इंक्लूजन का असर है इस पे। तो बहरहाल इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी जो टारगेट है वो हमारा एक ख्वाब है हमारा पूरे हिंदुस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का ख्वाब। हिंदुस्तान का तो है ही, पूरी दुनिया का ख्वाब है। यूनेस्को से ये पूरा का पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के पार्ट है। SDG 4 खासतौर पे एजुकेशन की बात करें। सो अब जाहिर सी बात है कि इंक्लूजन का इशू क्यों पैदा हुआ, मैं उस तरफ बढ़ता हूँ। व्हाई द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन हैज कम इनटू द डिस्कशन। Why the issue of inclusion has come to the discussion, come to the forefront? Why? This has been a big question mark since a long time. And the society and the government has been trying to deal with it for a long time. But still, we are lagging very, very, very behind in making the whole society inclusive and the whole education as an inclusive process. And this is basically, if you think from the perspective of sociology, then you will find that where there is much more diversity, there will be a problem of, issue of inclusion. हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर अपने आप में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी, इट इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। इसलिए हम लोग का नारा जो होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम सब पढ़ते आ रहे हैं स्कूलों से, हिंदुस्तान में अनेक जो है, अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स रिलीजन के लोग हैं, डाइवर्स आपको बिलीफ सिस्टम के लोग हिंदुस्तान में मिलते हैं, डाइवर्स ज्योग्राफिकल जो है ना रीजन के लोग हमारे पास हैं।
डाइवर्स कास्ट एंड क्रीड के लोग भी हमारे पास। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतना जो है, इतनी ज्यादा तरह का रिलीजन है यहाँ। जब रिलीजन बदलता है तो कल्चर अपने आप बदल जाता है। तो डिस्पाइट बीइंग having an Indian culture, within that Indian culture we have different sets of culture. डाइवर्सिटी तो रहेगी, डाइवर्सिटी है। अब उस डाइवर्सिटी को कैसे आप देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू लुक एट दैट डाइवर्सिटी, हाउ डू यू परसीव दोज डाइवर्सिटी, how do you treat that diversity, because diversity can be treated in a multifaceted manner. Diversity can be highly useful and it can be celebrated. It can be treated and used as an asset also. And if you look at this in a negative manner, then of course it can be a problem for the country. हमने अब तक कैसे देखा है, हमारी पॉलिसी कैसी रही है, पॉलिटिकल पार्टीज का आउटलुक कैसा रहा है, कॉमन सिटीजन इस डाइवर्सिटी को किस नजर से देखता है, टीचर अपनी क्लास में, हम लोग अब टीचर की बात करते हैं जब हायर एजुकेशन में या स्कूल एजुकेशन में, व्हेन वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, हमारे क्लास में डाइवर्सिटी होती है। 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड, they may be from different cultural background, they may be from different socio-economic background. How you as a teacher are dealing with this diversity in the classroom, that tells the entire story. कैसे डील करते हैं आप उस डाइवर्सिटी को, किस तरह से उस डाइवर्सिटी को आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एजुकेशन के। हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं जरा एक आपको दिखाता हूँ, कुछ डाटा भी दिखाऊंगा आपको, सिर्फ बातें ना करूँ, जिससे पता चले कि डाइवर्सिटी कितनी है, किस हद तक है, और मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर है, और फिर हाउ दीज डाइवर्सिटीज कैन बी एड्रेस्ड। वो NEP 2020 कैप है। तो लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन। So is it visible? The slides are visible. Can anybody tell? Yes, sir. Okay, thank you. So this is equitable and inclusive education, a learning for all. This is the title of discussion. And I was talking about diversity and disparities. We have, I was talking about why we talk of inclusion and equity. To bring, to utilize the benefits of diversity, to utilize the benefits of disparities. Because we have large disparities in the country. We all know that. इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात करने की हमें जरूरत नहीं है, इशारा भी किया आपको। तो डाइवर्सिटी और डिस्पैरिटीज किस किस लेवल पे है, किस किस लेवल पे हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर किस किस लेवल पर डाइवर्सिटी, दैट वी ऑल नो। NEP 2020 and सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, जो एक खास टर्म NEP ने डेवलप किया है, SCDGs जो पहली बार आए, एक अलग चैप्टर पूरा बना दिया है NEP ने, चैप्टर 6 में, जहां वो डील कर रहे हैं SCDGs के ऊपर। सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं जो किसी न किसी वजह से मेन स्ट्रीम से बाहर है, एंड वी आर ट्राइंग टू mainstream them, all those who are marginalized, who are socio-economically disadvantaged, but because of social background, because of economic background, because of cultural background, because of any other issues, because of disabilities and all that. There may be variety of reasons. So the focus is on inclusion, basically. The commitment of sustainable development goal. I was telling about the SDG 4, to ensure inclusive and equitable quality education and promote
lifelong learning for all is part of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Pledge to leave no one behind. कोई पीछे ना रहे. The agenda promises a just, equitable, tolerant, open, and socially inclusive world in which the needs of the most disadvantaged are met. This is basically the main focus of UN 2030 agenda. And based on UN 2030 agenda, Government of India, we have also set our aims, what we are going to achieve by 2030 in terms of education, especially. In terms of education, Government of India is we are trying to reach a particular level of gross enrollment ratio, which is very low now. We are trying to move up. I will be coming to that point. So inclusion should be for all. Everyone should be included. Everyone should be mainstream. Nobody should be lagging behind. If someone is born in a marginalized family, in a socio-economically disadvantaged family, in a background family, he or she should not be lagging behind because of the several these of such factors. The place of birth and should not be in the position and the social status, and haves or have not should not be the reason of lagging behind. So inclusion is required to be made a process. Everyone should be given chance to move ahead, to go ahead, to achieve, to prosper, to develop. And that should be reflected in the result of the efforts which are being put towards inclusion. So inclusion must be for all. Inclusion must be seen as a process, and inclusion must also be assessed in terms of the result at all these three levels. Now look at this data. All India Survey on Higher Education 2021-22 reflect that the gross enrollment ratio in higher education is 20 to 8.4%, which we as a nation is trying to lift it up to 50% by 2030. UN 2030 एजेंडा 2030 तक में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हमको 50% करने का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और एनईपी 2020 का टारगेट है जो अभी 2021-22 में 28.4%. अब आप सोच सकते हैं कि 24 से 2024 से ये 6 साल में हम 50% कैसे पहुंचेंगे, जब आप देख रहे हैं कि 2014-15 में 23.7% था, अब 2021-22 यानी कि 7 साल लगे इसको 23.7% से 28.4% तक पहुंचने में. जब 7 साल में हम पहुंचे हैं 23.7% से 28.4% तक, यानी कि तकरीबन 5% का इन्हांसमेंट मिला है, इंक्रीज मिला है, तो फिर आपको क्या लगता है कि आने वाले 6 सालों में हम क्या 28.4% से 50% तक जा सकते हैं? अगर हमारी एफर्ट्स अच्छी रही, हमारी पॉलिसी अच्छी रही, तो जरूर जाया जा सकता है. कोशिश तो की जा सकती है. अब देखेंगे कहाँ तक पहुंचते हैं. इसी कोशिश का नतीजा है कि एनईपी 2020 बहुत सारी एजुकेशन की पॉलिसी को लेकर के बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है. बहुत सारी नई चीज आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम हो, चाहे 4 ईयर का ग्रेजुएशन का प्रोग्राम हो, है ना, चाहे वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही हो. All these new efforts in the field of education are basically an effort towards bringing, the gross enrollment in higher education at an upper level, to improve the quality of higher education, to improve the input in higher education, to improve the enrollment in higher education, and of course, not only focus on enrollment, we should also focus on quality as well. So both are required. So this is one aspect of data, and you must be aware of what is GER. 28.4% means out of 100%,
out of 100 people who should be there in higher education. Out of those 100 people, only 28.4 in higher education. Rest of the people, that is, rest 72 people are not in higher education. This is GR, which is very low. और किसी मुल्क का GR इतना लो होगा तो कैसे बनेगा विकसित भारत? कैसे बन ही नहीं सकता। इसलिए GR पे काम करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए तब्दीलियां लानी पड़ेंगी, चेंज करना पड़ेगा, आप पूरे हायर एजुकेशन के सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। एक दूसरा डाटा यू कैन सी हियर, GR at all India level in higher education. Think about male and female also. This is also data from All India Survey of Higher Education 2021-22. You can see the data from the year 2021-22 and starting from 2017 to 18. You can see the GR for male and female was almost same, 24.5% and 24.6% in 2017-18. And now in 2021-22, the GR for male is 28.3% and for female is 28.5%, better than the male counterpart. तकरीबन देखा जा रहा है, मैं कह रहा था ना आपको, धीरे धीरे लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी हमारा स्टेटस है, इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। एक और डाटा आप देख सकते हैं यहाँ पर, हायर एजुकेशन का डाटा for SC and ST communities. You can see the GR of SC in 2014-15 was 19.10%, 2015-16 it was 19.90, then 21.0, then 21.80, and 2018-19 it was 23.00. 2024 के अराउंड भी अभी आप 25% के आसपास है। Again, you can see the status of GR for STs starting from 13.7% in 2014-15 to 17.20% in the year 2018-19. In 2024, it is around 19%. So these are the disparities, these are the variations. Among SC, it is 23%. Among STs, it is 17.2%. In general, it is 28.4%. So this is diversity. This is disparities. Why it is not, almost equal, around 28.4%? In all sections of society, people belong to different faith, different religion, different caste income. Why? This invites towards thinking about inclusion. Inclusion. It means some section of the society, because of some reason, are not getting proper, chance to be educated, to enter into higher education, to enter into education, to enter into school education, to enter into higher education, and to get a chance to be parallel, standing parallel to others. This is diversity. Then here you can see another data at global level. At global level, why USA is USA, is Germany, and France is France. You can see the data of global level, developed countries, some of the developed countries, some of the backward countries. You can see the GR for USA is 88.6%. Germany is 66.3%. France 62.9%. As far as India is concerned, it's 26%. This is data is a little old. Now it is 28%. Here you can see another data, GR and EER. GR is gross enrollment ratio and EER is eligible enrollment ratio. And what is the difference between these two? Maybe many of you may be aware about that. For USA, it is 88.6%. The GR, gross enrollment ratio, means all the people between the age group 18 to 23, out of the entire population of the age group between 18 to 23, 88.9% people are in higher education, have been enrolled in higher education. Rest is not in higher education.
Maybe rest, out of the rest people, that is out of the 12% people, some would not be eligible to get into the higher education. That is why another data is eligible enrollment ratio, 95.9 to 95.2%. Means among those who are between the age group of 18 to 23 and those who are eligible to enter into higher education, that is those who are already 12th class passed, out of those population, 95.2% have entered into higher education in USA. Similarly, for Germany, it is 84.6%. For France, it is 72.8%. For UK, 64.2%. For Brazil, 74.6%. For India, it is 63.7%. This is. It means we in India having EER, eligible enrollment ratio, is which is 63.7%. It means 37% of the population of the age group 18 to 23 who got 12th class passed but not entered into higher education. That's why we have 63.7% as EER, but GER is 26% in this particular graph. It means many of a large number of population is not eligible to enter into higher education, and out of those who are eligible to enter, out of those only 63.7% are entering into higher education. We need to rectify them. We need to improve them. We need to bring them back, encourage them, motivate them. We need to give them the facility and the chance to be educated, to get into higher education, and to improve their qualification and to improve their proficiency and all. This is this particular graph. Now come to the school enrollment. You can see the enrollment at the school level, because school education is a feeder for higher education. जितना अच्छा हमारा ये स्कूल एजुकेशन होगा, उतना ही अच्छा हमारा हायर एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन को बर्बाद कर दीजिए तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन अपना बर्बाद होगा, जो फीडर हमारे स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की हालत भी कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं 2018-19 से 2021-20 तक का डाटा इस ग्राफ के अंदर है, और तमाम लेवल्स के लिए है। हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, अपर प्राइमरी, प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी। रूट में देखिए आप नीचे में, वाई एक्स एक्सिस पे सबसे नीचे देखिएगा आप, जब 2018-19 का भी, 19-20 का भी, 20-21 का भी, 21-22 का, तो आप देख सकते हैं 18-19 की बात करें अगर, 1.2 करोड़ बच्चे हैं जो जा रहे हैं एडमिशन ले रहे हैं प्री प्राइमरी में। प्राइमरी में जा रहे हैं 12 करोड़ बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद जाइए अपर प्राइमरी, 6.4 करोड़ बच्चे एडमिशन लेते हैं। सेकेंडरी में 9th और 10th क्लास में 3.8 करोड़ बच्चे हैं, और हायर सेकेंडरी में 2.6 करोड़ बच्चे रहते हैं। ये एक साल 18 से 19 की बात है। अब जब आप गौर करेंगे, इस डाटा का एनालिसिस करेंगे, तो आपको मिलेगा, मैं एक इशारे के तौर पर बता रहा हूँ कि 2018-19 में 12 करोड़ बच्चे जो कि प्राइमरी स्कूल के लेवल पे थे, है ना, उन सबको 19-20 में अगर जाना है मिडिल में, तो वो देखिए कि 6.5% हो जा रहा है, 6.5 करोड़ हो जा रहा है। ये 6.5 करोड़ 20-21 में जाकर के सेकेंडरी लेवल पे 3 करोड़ हो जा रहा है, और 21-22 के बाद 20-21 से 21-22 में जाते जाते आप देखिएगा जो सेकेंडरी वाले जब जाते हैं सीनियर सेकेंडरी में, तो वो 2.86 करोड़ हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो टोटल इनरोलमेंट है वो ड्रॉप डाउन हो। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास बच्चे 12th क्लास पास करने वाले कम होंगे तो इनकी हायर एजुकेशन में कम होगा, तो ड्रॉप आउट से मतलब हमारे पास। उसके लिए बहुत सारे रीजन है। किसी को फैमिली इशू है, किसी को इकोनॉमिक इशू है, किसी को सोशल इशू है, किसी को कल्चरल इशू है। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे रुकावटें हैं हिंदुस्तान के तालिब इल्म। गाँव के बच्चों के अलग इशू है, शहर के बच्चों के अलग इशूज हैं, अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन के अलग इशू हैं, मुस्लिम फैमिलीज के अलग इशू हैं। वो कहते हैं लड़कियों को भेजेंगे हम गर्ल्स के स्कूल में, कोई भी भेजेंगे नहीं, गर्ल्स स्कूल हमारे यहाँ है नहीं, इसलिए हम भेज नहीं सकते। गैर तालीम याफ्ता रखेंगे लेकिन स्कूल में भेजेंगे। तो कैसे वो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, कैसे वो कम्युनिटी प्रोग्रेस करेगी, कैसे मुल्क प्रोग्रेस करेगा?
दिस वाज ऑल्सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप लोग कर रहे हैं। सर सैयद अहमद खान का यही सबसे बड़ी फिलॉसफी थी। सर सैयद अहमद खान ने फोकस किया था नो गर्ल्स एजुकेशन को, आगे लड़कियों की तालीम को, औरतों की तालीम को बढ़ाने की। तब उनके जहन में बात थी और उन्होंने उसको एड्रेस किया था, कोशिश की थी, वेट किया था गर्ल्स को बाहर निकालो घर से एजुकेशन की तरफ। तो बहरहाल डिस्पैरिटीज बहुत तरह की इस तरह की। एक और डाटा आप देखिएगा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय जेंडर एंड लेवल ऑफ एजुकेशन। ये 5 साल का फिर है, 2018-19 से 21-22 का, और गर्ल्स बॉयज का टोटल देख लीजिएगा, लेवल वाइज है। सबसे शुरू में सबसे पहला जो आपको नजर आ रहा है हिस्टोग्राम का डाटा, जो गर्ल्स के लिए है, जिसमें कि 18-19 से लेकर के 21-22 तक का सारा बार आपको नजर आ रहा है। 101.8%, 104.8% आपको नजर आ रहा है, जो डिफरेंट ईयर्स के लिए है, 18-19 से 21-22 तक। यानी कि तकरीबन हर बच्चा ऑलमोस्ट, है ना, 100% से ज्यादा का मतलब है कुछ बच्चे जो होते हैं वे रिपीट करते हैं क्लास के अंदर, कुछ एज से ज्यादा होते हैं वो एंट्री कर जाते हैं, उनको करार दिया जाता है, चूंकि एंट्री कराना सबको है, चाहे वो एज ज्यादा क्यों नहीं हो रही हो, वो गलत चीज है। तकरीबन each and every parent want to get their children educated, रोज लेवल हर बच्चा, तो आज बच्चा पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वो देख लीजिए, ट्रेंड देखिए, लगातार ग्राफ, आखिरी ग्राफ देखिए आप, जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, तो 100% से सीधे 50% पर आ गया। जो टोटल आपको सबसे आखिरी ग्राफ है, जो हायर सेकेंडरी, गर्ल्स का अलग है और बॉयज का अलग है ना, टोटल कर दिया हुआ है अलग। ये ऑलमोस्ट 100% से ड्रॉप डाउन होकर के 50% पर। इसका मतलब है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन एट स्कूल लेवल is being, dropped out in the entire process of schooling, starting from pre-primary to senior secondary. Again, जब आप स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा, गुर्बती अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, पॉवर्टी हो सकता है, इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, कल्चरल इश्यूज हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, घर में बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। And there are lots of issues and difficulties and obstacles which may be the reason behind their dropping out of this system. And that is the reason that Samagra Shiksha Abhiyan and Sarv Shiksha Abhiyan has worked very hard towards improving, the total enrollment and GER, and improvement, in declining the dropout rate of the students. And of course, there has been great achievement at that. बहुत कुछ बहुत काम हुआ, लेकिन still we have issues regarding that. Again, यहाँ और साफ नजर आएगा, 2013-14 से 2021-22 तक का डाटा आपको प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी का डाटा है। ये स्कूल का डाटा है, यूडाइस कहलाता है, यूडाइस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। हर स्कूल के अंदर डाटा जमा तैयार होता है। वो अल्टीमेटली तो हमारे पास दिल्ली में नीपा का नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर डाटा यू कैन रीचेक दिस डाटा देयर। तो आप यहाँ भी देखने में आपको मिलेगा, प्राइमरी में देखिए 107.9, गर्ल्स का, बॉयज का 106.5, 13-14 से लेकर के 21-22 तक लगातार 100% है। लेकिन यही सेकेंडरी पहुंचते पहुंचते आ जाता है, आपको देखिए 73 के अराउंड, 74-75 के अराउंड आ गया। ये चीज, ये डाटा आपके पास है। तो ये सारे के सारे इश्यूज हैं, ये सारे के सारे प्रॉब्लम हैं, और इसलिए हमें इंक्लूजन पर काम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। एक और डाटा आपको दिखा रहा हूँ, एक और ट्रेंड आप देख सकते हैं, सी हियर अनदर ट्रेंड। यहाँ एक अनोखा टाइप का ट्रेंड आपको नजर आता है अपने आप में, है ना, कि शेयर ऑफ इनरोलमेंट एट प्राइमरी लेवल, खास तौर पे इन प्राइवेट स्कूल, इन गवर्नमेंट स्कूल, ये असर की रिपोर्ट है 2021 की। आप देख सकते हैं तो इनरोलमेंट जो है, ब्लू कलर है, एक आपको रेड कलर में दिखाया। गवर्नमेंट स्कूल का शेयर जो है धीरे धीरे गिरता जा रहा है, और प्राइवेट स्कूल का शेयर धीरे धीरे बढ़ता चला रहा है इनरोलमेंट में। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है, बहुत बड़ा सवाल। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ किसानों का मुल्क है, गरीबों का मुल्क है, खेत में काम करने वालों का मुल्क है, मेजोरिटी पॉपुलेशन जो हमारी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है बेसिकली कहें अगर, गवर्नमेंट स्कूल को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये एक अलग बात है, जो भी अपने आप में सही है,
इकोनॉमिक्स के लोग जानते हैं कि कितना भी गवर्नमेंट स्कूल को आप जितना भी अच्छा कर दीजिए, प्राइवेट स्कूल एग्जिस्ट करेगा अगर, तो वो हमेशा गवर्नमेंट स्कूल से अच्छा रहेगा, और अच्छा बना के रखना पड़ेगा, तभी बच्चे उधर जाएंगे. Anyway, this is the scenario that the total enrollment of school primary school children in government school has been decreasing year by year from 2007-8 to 2019-20, and the share of enrollment in government private schools are increasing. ये लगा है. इसका मतलब ये है कि हमें अलार्म महसूस करने की जरूरत है, गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर करने की जरूरत है, टीचर प्रोफाइल रेशियो को बढ़ाने की जरूरत है, क्वालिटी को ठीक करने की जरूरत है, हम बच्चों को सस्टेन कर पाए. हालांकि जो मैंने पहले कहा वो भी अपना मुझे, इफ द टू सिस्टम विल एग्जिस्ट देन द प्राइवेट सिस्टम हमेशा अपने आप को बेहतर करके रखेगी, तभी वहां जाएंगे. प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल से हमेशा बेहतर अपने आप को बना कर रखते हैं, जिससे कि बच्चों में चले. सो ये एक अपने आप में एक अलग इशू है, लेकिन कंसर्न बहुत ही है. नाउ on the basis of all these data that I have discussed and shared with you, this is an indication that we need to work on inclusive education. We need to work on inclusive education. Enrollment trend class 1 से लेकर class 12 तक का देखा है, declining trend of enrollment है. Overall enrollments in school declines steadily from class 1 to class 12, significantly higher among ACDGs, socio-economic disadvantaged ग्रुप के जो बच्चे हैं, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, माइनॉरिटीज के हों, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हों, पिछड़ा वर्ग हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो, ये जो सेक्शन है सोसाइटी का, जिसको एनईपी खुद एक नया टर्म देकर बाद याद वो एड्रेस करता है, एससीडीजीज, उनका तो और ज्यादा जो है हायर ड्रॉप आउट होगा. इवन ग्रेटर डिक्लाइन फॉर फीमेल स्टूडेंट्स विद इन ईच ऑफ दीज कैटेगरीज, वो है द डिक्लाइन इन एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इज इवन स्टीपर. हायर एजुकेशन में जाकर के आपने देख लिया तो 28.4% आपका जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो अपने आप में बहुत कम, अपने आप में बहुत कम डिक्लाइन होता चला गया. ठीक है, अब इन सबको हमें इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कि हमें तो ओवरऑल पूरी एजुकेशन को, एजुकेशन के प्रोसेस को, एजुकेशन के सिस्टम को, हमारे टीचर लर्निंग के प्रोसेस को, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को हमें बनाना पड़ेगा. इंक्लूसिव सेटअप पूरा करना, टोटल सेटअप. एक और डाटा है जिसको मैं शेयर ज्यादा करने की जरूरत महसूस नहीं करता हूँ, ये बच्चों के अचीवमेंट का डाटा है, इसको भी इंक्लूसिव बनाने की पूरी जरूरत है. लिविंग ये थोड़ा नेशनल अचीवमेंट सर्वे का डाटा है 2021 का, जो ये दिखला रहा है कि बच्चे की परफॉर्मेंस जो है लैंग्वेज में, मैथ में, ईवीएस में, साइंस में, एसएसटी में और इंग्लिश में, इसमें टेस्ट लेते हैं 500 में कितने नंबर बच्चे ला रहे हैं. एक क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 9, 4 लेवल पे होता है. ऑल इंडिया सर्वे होता है, ऑल इंडिया टाइप सेंसस टाइप का टेस्ट है. नेशनल अचीवमेंट सर्वे दरअसल ये बच्चों का अचीवमेंट नहीं है, पूरी स्कूल सिस्टम का अचीवमेंट है कि स्कूल क्या कर. तो ये आपको डाटा वो बताता है कि क्या स्टेटस है हमारे बच्चों का और स्कूल का अचीवमेंट को लेकर. तो इन सारे डाटा के बेस पे और ये ग्लोबल सिनेरियो में भी तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे ही है. अफ्रीकन कंट्री में चल जाए तो और बुरा हाल है, साउथ अफ्रीकन कंट्री में चले जाओ, 7 कंट्रीज में कुछ ऐसे ही हालात है. ये है आपको तो यूनेस्को ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा, जो आपका एसडीजी 4 ऑफ 2030 एजेंडा for sustainable development adopted by India in 2015 seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. 2030 जो मिलेगा, ये हमारा 2015 में अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एजेंडा को, जो यूनेस्को का एजेंडा है, और एसडीजी 4 एजुकेशन के अंदर आता है, या एजुकेशन एसडीजी 4 के तहत आता है. और 2030 तक हमें इंश्योर करना है इंक्लूसिव एजुकेशन. उसका एक कंपोनेंट है कि हमें हायर एजुकेशन का जीआर ले जाना 50% तक, जो अभी 28%. अब कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जाना चाहिए, हाउ इट कैन बी डन, ये अपना आप देख सकते हैं. ये अपना टारगेट को बना देना, टारगेट को सेट कर देना, ये अपने आप में कमाल है. लेकिन इससे बड़ा कमाल है उस टारगेट को अचीव करना. सेट करने में तो आप कुछ भी सेट कर दीजिए, आप सेट करने के लिए आप सेट ही तो करना होता है. बोल दीजिए कि 50% का 60% कर देंगे, 80% कर देंगे, 40% कर देंगे, बट हम उसको अचीव कैसे करेंगे, ये किस हद तक अचीव कर सकते हैं, ठीक है, कितना हम अचीव कर सकते हैं, उसके हिसाब से गोल सेट होना चाहिए. एनीवे 50% का जो हमारा टारगेट है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं.
उसी के लिए पार्ट 1 एनईपी 2020 का जो डॉक्यूमेंट है उसके पार्ट 1 में चैप्टर 6 इज फुल्ली डिवोटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन, फुल्ली डिवोटेड, एक पूरा चैप्टर ही है। और एनईपी मानता है इस बात को, स्टेट करता है अपनी पॉलिसी के अंदर, लिखता है एजुकेशन इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। हमने अपनी शुरुआत में जो बात कही थी है ना कि एजुकेशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, एजुकेशन अपने आप इसके बगैर आप कर नहीं सकते, सोशल इक्वलिटी ला नहीं सकते, सोशल डेवलपमेंट ला नहीं सकते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला नहीं सकते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप ला नहीं सकते, एजुकेशन के बगैर नहीं होता। इंडस्ट्री खोल सकते हैं बगैर एजुकेशन के, इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री के मालिक हो सकते हैं बहुत हाईली एजुकेटेड ना हो, लेकिन उनका वर्क फोर्स में एजुकेटेड लोग जरूर, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। उनका मैनेजरियल टीम, उनका मैनेजमेंट हाईली एजुकेटेड और हाईली स्किल्ड हो। और आजकल तो ट्रेंड है, जितने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो ऑनर्स हैं, जो मालिक हैं, वो सब के सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए हैं। वो जमाना गया, धीरू भाई अंबानी के पास वो डिग्री नहीं थी, उस जमाने में तो उस तरह की डिग्री बहुत कम होती रही होंगी। और वो किस तरह से हिंदुस्तान से बाहर गए थे व्यापार करने के लिए, लंकाशायर और लंदन, फिर कैसे उन्होंने शुरू किया, उसकी फिल्म भी आ चुकी है, हम लोगों ने देखी भी है, हिस्ट्री है अपने आप में। लेकिन आज अंबानी ग्रुप या अडानी ग्रुप या रिलायंस ग्रुप या टाटा ग्रुप अपनी नई जनरेशन को हिंदुस्तान के बेहतरीन और दुनिया के बेहतरीन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन से मैनेजमेंट कराता है। सीख क्या हो, ठीक करो। Whereas education is the single greatest tool for achieving social justice and equality, और इसलिए एनईपी 2020 ने एजुकेशन पर फोकस करने के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन पर, इंक्लूसिव सोसाइटी पे, इंक्लूसिव प्रोसेस पे फोकस करने के लिए जब को अपना अलग कर दिया। बिकॉज इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन critical to achieving an inclusive and equitable society in which every citizen has the opportunity to dream, thrive and contribute to the nation। तो मैंने सबसे शुरू में कहा कि हर बच्चे को, हर इंडिविजुअल को, हर फर्द को, चाहे वो किसी भी माशरे से हो, किसी भी कम्युनिटी से भी हो, किसी भी मजहब से हो, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से का रहने वाला हो, उन सबको उसके एबिलिटी के हिसाब से मौका मिलना चाहिए अचीव करने का और आगे बढ़ने का। मैं चूंकि एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ और मैं इस बात को समझता हूँ, पढ़ा है, पढ़ाते हैं, ये बात ही करते हैं रोज, और आप सब चूंकि यूनिवर्सिटी के हायर एजुकेशन में हैं, तो अब तो मेरे ख्याल में सबके समझ में इतनी बात आ जाती है कि कोई बच्चा अगर किसी गरीब परिवार में पैदा हो गया हो, जहां उसके पास रिसोर्सेज है ही नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, वसाइल नहीं है, उसके साधन नहीं है, तो उसकी जो एबिलिटी है, जो उसका जो पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पावर ऑफ क्रिएटिविटी है, पावर ऑफ इंटेलिजेंस है, वो अपने आप रिड्यूस हो जाती है। उसी बच्चे को आप ला करके किसी ऐसे समाज में, ऐसे सोसाइटी में, ऐसे पेरेंट के साथ पेरेंटिंग के लिए मौका उसको दे दीजिए, जहाँ रिसोर्सेज हो, साधन हो, अपॉर्चुनिटीज हो, फिर देखिए वही बच्चा वो सब कुछ कर लेता है जो उस माहौल में नहीं कर पाता। इस पर रिसर्चेस है, रिसर्चेस भी हो चुकी है। एक रिसर्चेस पे हुई है, ट्विंस की पैदाइश हुई, दो बहनों की, और एक बहन एक ट्राइबल फैमिली में पैदा हुए थे, एक ट्राइबल एरिया में ही रही, वहीं उसकी परवरिश हुई, और एक दूसरी बहन जो ट्विन थी, कुछ दिनों के बाद उसको एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने का मौका मिला रिलेटिवली। And there was a remarkable difference in due course of time. Remarkable difference. It is because of the avenues, because of the opportunities, because of the availability of resources and all that. Inclusive का मतलब है हम मौका दें उन लोगों को जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, साधन नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई काउंसिल करने वाला नहीं। ये काम, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, ये जिम्मेदारी स्कूल की है, ये जिम्मेदारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सिस्टम की है कि हम अपने सिस्टम को ऐसा बनाएं कि हर बच्चा, हर लर्नर जो लर्न करना चाहता है, एडमिशन चाहता है, एनरोलमेंट चाहता है, पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उसको सीखने का मौका मिले। जो चाहता है वो किसी वजह से पीछे ना रह जाए, जो नहीं चाहता है उसको
चाहने के लायक बनाया जाए, लेकिन जो चाहता है वो किसी दूसरी वजह से पीछे रहे। The education system must aim to benefit India's children so that no child loses any opportunity to learn and excel because of circumstances of birth or background. इसकी पैदाइश कहाँ हुई है और किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, this should not be an obstacle for the educational and economic and social and psychological and other developmental aspects of the individual. बिल्कुल नहीं। ये अगर कर पाए, ये अगर कर पाए तो वो इंक्लूजन होगा, तो वो इंक्लूजन होगा। ब्रिजिंग द सोशल कैटेगरी गैप इन एक्सेस, participation and learning outcomes in school education and higher education as well. ये अपना कैसे गैप को ब्रिज करें, ये काम इंक्लूसिव एजुकेशन। देयर आर सो मेनी गैप्स, इन एक्सेस में गैप है, पार्टिसिपेशन में गैप है, लर्निंग आउटकम के अंदर गैप है। वी विल डिस्कस इन डिटेल हियर। ब्रिजिंग गैप्स एंड इंश्योरिंग लर्निंग फॉर ऑल थ्रू 5 लेवल्स। ये 5 लेवल है, 5 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल। दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, most important aspect. And for all levels of education, from pre-primary to higher education, for all levels, access, they must provide access to all levels of education to all the needy learners, all that who want education, who desire to be educated. एक बच्चा भी ये न कहे कि हमको स्कूल में दाखिला नहीं मिला। हमको जो कोई बच्चा अगर कहता है कि हमें स्कूल में दाखिला नहीं मिला, इसका मतलब एक्सेस नहीं मिल पाया। कोई कहता है कि हमको कॉलेज नहीं मिला, यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला नहीं हुआ और इसलिए मेरा 1 साल खराब हो गया, 2 साल खराब हो गया, तो ये कमी है हमारे सिस्टम की कि उस बच्चे को दाखिला क्यों नहीं मिला। ठीक है, हर बच्चे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा, ये बात सही है। हर बच्चे को एमयू में, जामिया में, जेएनयू में, बीएचयू में दाखिला नहीं मिलेगा, दूसरी यूनिवर्सिटी में तो मिलेगा, मिलना चाहिए। लेकिन अगर हमारा घर है अलीगढ़ में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, हमको मिल रहा है दाखिला सीयूईटी के थ्रू गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, और हम हैं गरीब, हम कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे वहाँ? क्या हॉस्टल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह वगैरह। देयर आर सो मेनी इश्यूज, सो मेनी इश्यूज देयर मे बी। ये सोचने का मुकाम है और करने का, डिस्कशन करना। लेकिन मैं अभी बहरहाल फोकस कर रहा हूँ एक्सेस। स्कूल लेवल पे एक्सेस आज की डेट में हिंदुस्तान में 100% एक्सेस, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दावा इसलिए कर रहा हूँ कि आई हैव बीन वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मॉनिटरिंग टीम ऑफ समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, फ्रॉम 2007 to 2017, almost 10 years, which was carried out by Ministry of Education, which was used to be called as Ministry of HRD, Human Resource Development, and visited many states, especially Bihar and Uttar Pradesh, many part of Bihar, many part of Uttar Pradesh. And in addition to that, in 2009, Right to Education Act was passed, and education was made a fundamental right. Along with right to life, Article 21A में डाला गया। उसका एक्सेस तो भाई, इसलिए और कहा गया कि within 1 kilometer, within the periphery of 1 kilometer, there must be one primary school. Within the periphery of 3 kilometer, there must be a middle school. Within the periphery of 5 kilometer, there must be a secondary school. There must be. Right to education. और आज हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे, आप स्टडी करेंगे तो प्राइमरी स्कूल के लिए किसी भी बच्चे को 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना पड़ता है। जी स्कूल है, मिडिल स्कूल के लिए 3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना पड़ता है। अपनी मर्जी से आप कहीं जा रहे हैं किसी अच्छे स्कूल में, या आपके पसंद का कोई स्कूल है, बीच में एक स्कूल छोड़ के आप उस स्कूल में जा रहे हैं, अलग बात है। But the situation is that no child can claim, no parent can claim that we don't have the school within the radius of 1 kilometer, within the radius of 3 kilometer or 5 kilometer. That's primary, middle, and secondary school. So access, school education में access आज की डेट में 100%। सन 2000 में
शुरू हुआ था एजुकेशन फॉर ऑल, सर्व शिक्षा अभियान सन 2000, और आज भी चल रहा है। आज उसका नाम हो गया समग्र शिक्षा अभियान। मिड डे मील उसका एक पार्ट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उसका एक पार्ट है। तो बहुत सारे इस स्कीम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। एक्सेस का जो ऑब्स्टेकल था पहले, अब नहीं, ये रुकावट एक्सेस पूरा। सेकेंड चैलेंज वो है इनरोलमेंट। एक्सेस क्या है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे बच्चों को दाखिला मिलता नहीं है, और बहुत सारे बच्चों के पास वाले कॉलेज में, पास वाली यूनिवर्सिटी में, होम टाउन की यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, और भाई हम पटना, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जा नहीं सकते। देयर मे बी वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स वन ऑफ देम, फैमिली फैक्टर्स मे बी द अनदर फैक्टर। इसका मतलब है कि हायर एजुकेशन में एक्सेस को पर गौर करने की जरूरत है। कॉलेज खोलने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी आपको खोलनी पड़ेगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर हमको नहीं करना चाहिए डिपेंड, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस ज्यादा होती है, और बच्चे हमारे मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ से देंगे पैसे? तो गवर्नमेंट बहुत सारे एनईपी 2020 में ये बात है कि बहुत सारे कॉलेज खोले जाएंगे जो टोटली एकेडमिक कॉलेजेस होंगे, कुछ प्रोफेशनल डिग्री, कुछ प्रोफेशनल बेस्ड कॉलेज यूनिवर्सिटीज होंगी। तीन तरह की यूनिवर्सिटीज के बारे में। रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी होगी, कुछ जो होगी रिसर्च और एकेडमिक दोनों को कोलैबोरेट करके करेंगे, और कुछ प्योरली एकेडमिक बेस्ड यूनिवर्सिटीज, तो नई यूनिवर्सिटी ये देखता है। तो बहरहाल एक्सेस, देन इनरोलमेंट। एक्सेस तो है, स्कूल खोल के छोड़ दोगे आप, बच्चों को लाना भी तो पड़ेगा आपको। कॉलेज खोल के छोड़ देने से काम थोड़ा चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तो खुद ब खुद आते हैं, कुछ पेरेंट बच्चों को खुद ब खुद एडमिशन कराते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है ना। और आजकल आपको पता होगा स्कूल में, हर स्कूल में उसका एक मैनेजमेंट होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहलाता है, SMC। हर स्कूल के अंदर होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, खासतौर पर जो मैनेजमेंट कॉलेजेस, उनका अपना मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो मैनेजिंग कमेटी की जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपने इलाके के स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेज तक लाए और अपने इनरोलमेंट को 100% करे। यानी आपके स्कूल के दायरे में प्राइमरी स्कूल है, और आपके प्राइमरी स्कूल के आस पास जितने भी गाँव हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन बनाया हुआ है कि फीडर स्कूल्स कहलाते हैं। फीडर एरिया, हर स्कूल का फीडर एरिया है। एक स्कूल अगर ए है तो उसके आसपास के 4, 5, 6, 7 जो टोले या गांव हैं, वो नाम लिखा हुआ है कि आप ये हमारे इस स्कूल का ये 5 गांव फीडर एरिया है। इन 5 गांव के बच्चों को मना नहीं कर सकते। ये दूसरा स्कूल वहां पे है, उसका ये 4 गांव, 4 विलेजेस है, 4 सेटलमेंट्स, फीडर एरिया पूरा ईयर मार्क किया हुआ है गवर्नमेंट। तो आपको जाकर के टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोगों की जिम्मेदारी है कि जाकर के बच्चों को, जो बच्चे अपने आप नहीं आ रहे हैं एडमिशन के लिए, उनके पेरेंट्स से बात करें, उनको जो है उनसे डिस्कस करें, डिलिबरेट करें, उनको तैयार करें, एग्री करें, इनको इंकरेज करें, तो बच्चों को स्कूल भेजें। तो इनरोलमेंट को हमें 100% करना पड़ेगा। तो एक्सेस का इशू तो खत्म हो गया स्कूल लेवल पे, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे है इनरोलमेंट का अपना अपनी इशू है। 100% इनरोलमेंट होना चाहिए, 100% इनरोलमेंट स्कूल लेवल पर जितना ज्यादा होगा, 100% होगा, कॉलेज का भी अपने आप बढ़ेगा। बिकॉज फॉर कॉलेज एंड हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन इज फीडर। तो इनरोलमेंट अपने आप में एक चैलेंज। Everyone who is eligible to get into different levels of schooling and different levels of higher education should be admitted in the respective levels of education. ये इनरोलमेंट की बात, उसके लिए काम पॉलिसी बहुत सारी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी बहुत सारे स्कॉलरशिप कर देती है स्कीम, इसीलिए स्कॉलरशिप का, बल्कि मिड डे मील स्कीम भी इसीलिए चल रहा है। मिड डे मील की अगर आप साइकोलॉजी में जाइए, सोशियोलॉजी में जाइए, तो आपको पता चलेगा क्यों चल रहा है मिड डे मील स्कीम, क्यों चल रहा है, उसके पीछे की फिलॉसफी है, उसके पीछे एक सोशियोलॉजी है। हाँ, आप रूरल इंडिया में चले जाइए, आज तो 2024 है, आज से अगर 10 साल पहले की बात करें आप, मैंने कहा 2000 में शुरू हुआ था मिड डे मील स्कीम, प्रत्यक्ष अभियान, यानी कि 24 साल हो गए। 24 साल पहले का हिंदुस्तान बिल्कुल अलग था, 2024 का हिंदुस्तान बिल्कुल अलग है। और 2000 से और पहले की अगर बात करें, 90s की बात करें, और अगर आप 80s की बात करें और 70s की बात करें, और तो हिंदुस्तान बिल्कुल अलग था। उस जमाने में जो बिल्कुल सही पढ़ते थे किताबों में, आजकल शायद वो बात नहीं है कि हिंदुस्तान में, खासतौर पर रूरल इंडिया में, सेमी अर्बन इंडिया में, गाँव में लोगों को 3 टाइम का खाना नहीं मिलता था।
तीनों टाइम कि नाश्ता भी कर रहे हैं, दिन का खाना भी खा रहे हैं, रात का खाना भी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये कॉन्सेप्ट नहीं था गाँव में, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी नहीं, किसान थे, और वो हिंदुस्तान का किसान मानसून की तरफ देखता था, तो कभी उसको बारिश नहीं हुई, फसल नहीं हुआ, और कभी बारिश इतनी हो गई कि सैलाब आ गया। तो किसान के घरों में भी अनाज की दुश्वारियां हुआ करती थी बहुत सारा। इसलिए 3 टाइम का खाना गिने चुने बड़े जमींदार लोगों के यहाँ होता था, गरीबों किसान के यहाँ भी नहीं। और जो मजदूरी करते थे उनकी बात तो छोड़ दीजिए, और मजदूर का तबका सबसे बड़ा था। गोया के आमतौर पे गाँव में खाना 2 टाइम ही बनता था, एक बार 11 बजे के आसपास और एक बार के रात में। वो 11 बजे के आसपास जो खाना घर में बनता था, नाश्ता खाना मिला कर बनता था एक साथ, बच्चे भी तभी खाते थे, और उनके पापा और मम्मी या जो भी काम करने वाले मजदूर हो या किसान हो, वो खेतों में भी उन्हीं के उसी वक्त में खाना पहुंचाया जाता था खेत के। अब बच्चे स्कूल का टाइम तो 10 बजे का थे, 9:30 10 का टाइम, बच्चे बगैर खाए हुए आते थे स्कूल, क्योंकि खाना नाश्ता तैयार ही नहीं, भागना पड़ता था बच्चे का दिमाग। अब आप यहाँ पर मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड को याद कीजिए। तो मैस्लो कहता है बायोलॉजिकल नीड, बच्चे की, हर इंसान की जरूरत है भाई, खाना कपड़ा मकान बुनियादी जरूरत है। जब तक खाना नहीं मिलेगा, पेट भरा नहीं होगा, तो पढ़ेंगे खाक। जो कहावत नहीं है, भूखे पेट न होता भजन गोपाल, तो पेट में हुए भजन गोपाल, भजन भी नहीं होता, नमाजें भी नहीं होंगी, चर्च भी नहीं जाके क्या करेंगे आप, ध्यान तो आपका पेट पे है। इसलिए बच्चे इंतजार करते रहते कि 11 साढ़े 12 बजेगा तो घर जाएंगे खाने के लिए, भूख तो लगेगी, बच्चा तो बच्चा ही। पढ़ाई क्या करता था, दिमाग भटका हुआ, इंतजार टाइम का। जैसे स्कूल की घड़ी में देखा, अच्छा बच गया, छोड़ो छाड़ो यार, मास्टर उसको भी गोली मारो, छोड़ छाड़ के क्लास भागे, दौड़े दौड़े भागे जा रहे हैं। इसलिए मिड डे मील स्कीम है, कुछ बच्चों के पास वो भी नहीं थी, कुछ बच्चों के पास वो भी समस्या। तो इसलिए मिड डे मील स्कीम है, यानी बच्चों को स्कूल में दीजिए खाना। एक जमाने में चना बांटा जाता था, चना फुला करके, 2000 के बाद प्रॉपर मील आया है। उसके पहले छोटी छोटी स्कीम थी इंडियन लेवल, बादाम बांटना, चना बांटना, 2-4 इस तरह से एक मुट्ठी चना बांटना वगैरह। लेकिन सन 2000 के बाद एजुकेशन फॉर ऑल जो कैंपेन है, यूनेस्को का जो कैंपेन है, एजुकेशन फॉर ऑल एट द ग्लोबल लेवल, हिंदुस्तान ने उसको अडॉप्ट किया सबसे अच्छा अभियान के नाम से। तो फिर फुल मील आया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का पूरा मेनू बना, ये भी लेकर बच्चों, ताकि बच्चे एक तो भागने के चक्कर में भी ना रहे, और खाने के वजह से ही इनरोलमेंट बढ़े, बच्चे आए दाखिला लें स्कूल में उसकी वजह से। और फिर साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बच्चों को मिल पाए, उसकी हेल्थ अच्छा हो, सेहत अच्छी रहे, तब तो पढ़ाई लिखेगा और कुछ करेगा। ये बेसिकली इनरोलमेंट को बढ़ाना मकसद था, फोकस था। ईच वन ऑफ द चाइल्ड शुड बी इनरोल्ड इन स्कूल। ये बात कॉलेज के लिए भी है, जो बच्चा स्कूल लेवल पास करके 12वीं क्लास, ऑल ऑफ देम मस्ट बी इन हायर एजुकेशन, ऑल ऑफ देम। ये अलग बात है कि 12वीं किया और कुछ नहीं, उसने कोई प्रोफेशनल कोर्स पे चला गया, वोकेशनल कोर्स पे चला गया, अच्छी बात है, कर लो भाई, एंट्री करो आप, कहीं ना कहीं तो हो आप। तो दूसरा चैलेंज जो इनरोलमेंट का है, इसको भी स्कूल लेवल पे सर्व शिक्षा अभियान ने, मिड डे मील की स्कीम ने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स, बहुत सारे स्कॉलरशिप, इन सब की बदौलत हिंदुस्तान ने ऑलमोस्ट इनरोलमेंट 100% कर लिया है स्कूल लेवल पे। इसमें सबसे आगे केरला हमेशा से रहा है, नंबर 1 पे पहले, और सबसे पीछे इस तरह के स्टेट्स रहे, राजस्थान, हरियाणा वगैरह, झारखंड वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह पीछे रहे। लेकिन फिर भी 90% के ऊपर चला गया तकरीबन ऑल इंडिया में चला गया। अब एक तीसरा चैलेंज है, तीसरा ऑब्स्टेकल, तीसरा गैप जो है वो रिटेंशन का है कि जितने बच्चे एडमिशन ले लिए, अब उनको रिटेन करना है आपको। पहली क्लास में बच्चा दाखिल अगर हो गया, एक तो पूरा साल पहली को मुकम्मल करे, फिर दूसरे में जाके, तीसरे में जाके करो, यानी स्कूल एजुकेशन को पूरा करे। एक बच्चा अगर बीए में दाखिला लिया फर्स्ट ईयर में, तो वो 3 साल 4 साल का बीए पूरा करे। रिटेंशन इज अनदर इंपॉर्टेंट challenge. The system is required to retain all those students in a school system or university system
once they get admission. ऐसा ना कि छोड़ के चला जाए, ड्रॉप आउट हो जाए। और उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बहुत सारे ड्रॉप आउट होते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं। मम्मी की तबीयत खराब हो गई, एक महीने स्कूल नहीं आया, फिर वो डिसकंटिन्यूटी हो गई, छोड़ दिया। फादर की तबीयत खराब हो गई, दुकान पे बैठने वाला कोई नहीं है, दुकान पे बैठना पड़ा क्योंकि फादर हॉस्पिटल में थे या कमजोर हो गए थे, दुकान चलानी जरूरी थी। दुकान पे कौन बैठता, मेरे बाप कोई है ही नहीं घर में, तो दुकान पे बैठने लगे, 6 महीने दुकान पे बैठे, एजुकेशन खत्म। हाँ, गर्ल्स के मामले में तो और बड़ा इशू है ना, अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली मैरिज अपने आप में एक इशू, और एक फिलोसफिकल और कल्चरल और सोशल स्टिग्मा भी। लड़कियां ही तो हैं, दूसरे घर चली जाएंगी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी। तो इसलिए रिटेंशन अपने आप में चाहिए। एनरोलमेंट को आपने अगर अचीव कर लिया तो फिर all those students who have got enrolled at different levels of education, they must be retained to complete their education. ये अपने आप में चाहिए बात, रिटेंशन। और चौथी बात वो पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन, एक तो रिटेंशन को स्ट्रेंथन करेगा अगर पार्टिसिपेशन होगा। कई बार पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से जो है रिटेंशन नहीं होता। भाई एक बच्चा जो है स्कूल रोज आ रहा है, 1 महीना से 2 महीने से देख रहे हैं, अब वो पीछे के टेबल पे बैठता है, बेंच पे क्लास में, टीचर आते हैं, मैथ वाले भी, साइंस वाले भी, और केमिस्ट्री और जो है सोशल साइंस वाले भी, और उस बच्चे से कोई बात ही नहीं करता है, उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं आप क्लास में, उससे आप सवाल नहीं पूछते हैं, उसकी तरफ देख करके बात नहीं करते हैं आप, न टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि बच्चों का ग्रुप भी नहीं बन पा रहा है उसके साथ, सोशल ग्रुप जो होता है बच्चों का, मन पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, बच्चे लर्निंग में पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। कई बार हम लोग कॉलेज में भी देखते हैं, यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं, आप सबको तजुर्बा होगा। आपकी क्लास में अगर 60, 70, 80 बच्चे हैं, हायर एजुकेशन में तो बच्चे सब होशियार होते हैं और पार्टिसिपेट अपना खुद कर लेते हैं, है ना, 2, 4 सवा 10 सवाल ठोक देते हैं वो, है ना, लेक्चर देते हैं आप। लेकिन स्कूल में आप देखिएगा, है ना, क्या प्रॉब्लम है, कई सारे इश्यूज निकल के आते हैं, कई सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होगा। ऐसा लगता है कि आगे जो बैठे बच्चे हैं, 7, 8, 10, 15 बच्चे हैं, दो रोज में बैठे हुए हैं, उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, उन्हीं से सवाल जवाब, उन्हीं से क्वेश्चन, उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है। बाकी पीछे के रोज में जो बच्चे बैठे हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं, उनसे सवाल आप कराते हैं, उनको खड़ा नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, उन पर तवज्जो नहीं देते हैं। तो उसका इंटरेस्ट अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। उनमें से कुछ तो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, कुछ तो छोड़ देंगे, कुछ के समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, जो भी एक्टिविटी होगी वो हर एक्टिविटी में वही लीड रोल प्ले कर रहा है, इसलिए कि टीचर को इस बात की फिक्र है कि हमारा प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, इसलिए जो बच्चा होशियार है उसी को मौका बार बार दे रहे हैं। जो बच्चा बहुत होशियार नहीं है, बहुत एक्टिव नहीं है, उसको आप टीचर भी साइड कर देते हैं, मैनेजमेंट भी साइड कर देता है, नहीं, उसको मौका मिलता नहीं है। और जब मौका मिलता नहीं है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, डिस्करेज होता है, और अल्टीमेटली या तो ड्रॉप आउट हो जाता है या उसका अचीवमेंट अपने आप बहुत ही कम होता है। That's the reason that we as a teacher need to make the whole system of teaching learning participatory in nature, and we need to focus upon whether each one of our learner is participating or not. We need to ensure that each one participates, each one asks question, or you ask question to each one, maybe not in the single class, in different classes. कभी आप फ्रंट के रो पे फोकस कीजिए, कभी आप मिडिल रो पे फोकस कीजिए, कभी आप बैक बेंच पे फोकस कीजिए, सीटिंग के प्लान को बदलिए। स्कूलों में तो बच्चे आमतौर पे, कॉलेज में भी कब्जा ही हो जाता है, ठीक है हमारा रमेश की जगह है, ये महेश की जगह है, ये अली की जगह है, फिक्स हो जाती है, तो ट्रेंड है। सो वी नीड टू क्रिएट ग्रुप्स, लर्निंग ग्रुप्स बनाने की जरूरत है, लर्नर्स ग्रुप बनाने की जरूरत है, लर्निंग टीम बनाने की जरूरत है। पार्टिसिपेशन के लिए, उसको एनहांस करने के लिए बच्चों को इन्वॉल्व करना जरूरी है। द मोर दे आर इन्वॉल्व्ड, द मोर दे विल लर्न। वाइगॉट्स्की बहुत बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, लेव वाइगॉट्स्की, उनका थ्योरी, उनकी लर्निंग थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी।
सोशल लर्निंग थ्रू। वो बात करते हैं, ये कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लर्निंग। The more the students interact with the teacher, with the society, with the community, with the friends, with the colleagues, with the seniors, with the juniors, the more they learn. Social interaction. इसलिए पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की जरूरत है, पार्टिसिपेशन को बेहतर बनाने की जरूरत है। पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा, लर्निंग उतनी ज्यादा। पार्टिसिपेशन ही इंश्योर करेगा जो अगला गैप्स है, वो लर्निंग आउटकम्स। बच्चे सीख कितना रहे, आउटकम क्या है। पता चला कि पूरे 7 घंटा स्कूल में बिता दिया, 6 घंटा स्कूल में बिता दिया, 45 मिनट के पीरियड खत्म हो गए, क्या सीखा आपने? 45 मिनट में एक क्या चीज सीखा, बता दो आप। Learning outcome. What was the objective of this particular class? Whether those objectives have been achieved or not. What behavioral changes the teacher was trying to bring in the learner, whether that has been achieved or not. What skill the teacher has planned to develop in the learner, whether those skills have been developed or not. What attitudinal changes you would like to see in your learner after the class, after the session, after the semester, whether those changes are there or not. So teacher की निगाह उस पर होनी चाहिए। टीचर की निगाह उस एम्स पे, उन ऑब्जेक्टिव्स पे होनी चाहिए जो बच्चों के पूरी शख्सियत में आप देखना चाहते हैं, और उनका असेसमेंट उसी हिसाब से होना चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन की निगाह मछली के आंख पर थी, मछली पे नहीं थी, और इसलिए टारगेट बिल्कुल सही निकला। टीचर की निगाह भी तनख्वाह पे सिर्फ नहीं होनी चाहिए, सैलरी आई कि नहीं आई, लेट क्यों हो रही है, टाइम पे क्यों नहीं आती है, और हमारे क्लास का एसी ठीक हुआ कि नहीं, अबला थिंग्स। ये ठीक है, कंसर्न की चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंसर्न की चीज ये है कि मेरी क्लास में अगर 25, 30, 40, 50 बच्चे हैं, इन 50 बच्चे जब हमारे पहली बार मेरी क्लास में आए थे तो उनके लर्निंग का लेवल क्या था, अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या था, और अब हमारी क्लास जो हो रही है, क्लास दर क्लास और कंटेंट दर कंटेंट पढ़ा जो रही है, उनमें क्या तब्दीली है, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रही है नहीं, अंडरस्टैंड डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, स्किल इनहांस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ एटीट्यूड में तब्दीली आ रही है नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह। वो दैट आर बेसिकली लर्निंग आउटकम्स। ये नहीं कि हमारा काम सिर्फ सिलेबस खत्म करना है, यार एग्जाम देना है, जो हम खत्म कर देंगे। सिलेबस खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इससे बड़ी जिम्मेदारी है कि उस सिलेबस के जरिए बच्चों के पूरी पर्सनालिटी में क्या तब्दीलियां देखनी चाहिए। वो तब्दीली कितना कर पाया आप, ये आप ही काम है। तो इंक्लूसिव जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये सारे लेवल पे इंक्लूजन है। इंक्लूजन एट द लेवल ऑफ एक्सेस, एट द लेवल ऑफ एक्सेस भी इंक्लूजन है। ऐसा नहीं कि गांव का जो जमींदार का बेटा है उसको तो स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन गांव में जो गरीब तबका है वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, जो रिक्शा चलाता है, फल बेचता है, फल जोतता है, उसके बच्चों को दाखिला नहीं मिला। दिस इज नॉट इंक्लूजन। ये एक्सेस लेवल पे इंक्लूजन, इनरोलमेंट लेवल पे इंक्लूजन, रिटेंशन के लेवल पे इंक्लूजन, पार्टिसिपेशन के लेवल पे इंक्लूजन, हाँ वो भी जरूरी है पार्टिसिपेशन के लेवल पे। एंड आई हैव सीन दिस दैट during my monitoring of such Abhiyan at the level of classroom participation, I personally observed that that level of participation was there in the classes. There are many students who were just sitting in the class, totally passive in the corner of a class. चाहे वो सरकारी स्कूल में बोरी पे बैठे हुए हों या किसी स्कूल में बेंच पे बैठे, no questions to them at all, because of so many social factors जो मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता। टीचर्स की फिलॉसफी बिल्कुल डिफरेंट, टीचर की साइकोलॉजी डिफरेंट। कई बार टीचर्स को पाया कि ये लोग क्या पढ़ेंगे, ये लोग पढ़ने थोड़ी आते हैं, स्कूल आते हैं मिड डे मील के लिए। अगर आपने ये सोच लिया तो आप कैसे जस्टिस कर पाएंगे एजुकेशन के साथ और टीचिंग के साथ और लर्निंग के साथ। So it is the responsibility of the teacher to make the entire process
ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड एजुकेशन इंक्लूसिव। तो लर्निंग भी इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सेस से लेकर के लर्निंग आउटकम्स तक इंक्लूसिव होना चाहिए, तब जाकर के आप कह सकते हो कि इंक्लूसिव एजुकेशन। सिर्फ स्कूल खोल देने से, कॉलेज खोल देने से, बच्चे को एडमिशन दे देने से इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं होगा। इंक्लूसिव लर्निंग तक पहुंचना पड़ेगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट तक। टारगेट हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट wherein each section of the society has equal opportunity and equity towards development and progress. एजुकेशन के अंदर इंक्लूजन एज ए प्रोसेस एट ऑल लेवल्स, वो एक शुरुआत है, वो एक मीन्स है, वो एक जरिया है, वो एक ब्रिज है, वो एक पुल है जो सबको ले जा सकता है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तक। ये सारे के स्टेजेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हाउ टू एलिमिनेट दीज बैरियर्स। ये जो बैरियर्स थे हमने ऑलरेडी बात कर ली है, इससे ज्यादा बात करूंगा नहीं, इतना ज्यादा टाइम। एलिमिनेटिंग दीज बैरियर्स, जो बैरियर्स को खत्म करने के लिए, जो लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल, ये मैंने ऑलरेडी बात कर लिया आपको। सब शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, बहुत सारे चीजें इसके अंदर रही हैं, है ना। अपने आप में जो बैरियर्स, पॉवर्टी अपने आप में बैरियर है। सोशल मोर्स एंड कस्टम्स हमने और इशारा कर दिया है। लैंग्वेज कई बार बैरियर बन के सामने आता है, लैंग्वेज। हाँ, कि अगर किसी मराठी स्कूल में, मराठी इलाके में कोई हिंदी स्पीकिंग बच्चा टीचर अगर पहुंच गया जिसको मराठी नहीं आती है, तो अपना प्रॉब्लम हो जाएगा, इशू हो जाएगा, एज ए बैरियर काम करेगा। भोजपुरी इलाके में, है ना, भोजपुर के इलाके में, सीवान के इलाके में जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, किसी ऐसे इलाके से अगर कोई टीचर चला जाए जिसको भोजपुरी नहीं आती हो, हिंदी बोलता हो, उर्दू बोलता हो, भोजपुरी नहीं बोलता हो, तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चों को दिक्कत होगी, टीचर को भी दिक्कत। और इसलिए एनईपी 2020 कहता है कि नो, टीच द क्लास इन द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी। लोकल लैंग्वेज में पढ़ाइए, मदर टंग में पढ़ाइए, कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाए। कम से कम 8वीं क्लास तक तो कहा कंपलसरी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है, और पॉसिबल है तो 10वीं क्लास तक आप पढ़ाइए लोकल, अगर पॉसिबल, ये भी कहा। तो लैंग्वेज बैरियर रहा है, हमेशा रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए नहीं कह रहा है। टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं किया, उसी हिसाब से। भोजपुरी इलाके में, भोजपुर के इलाके में, सीवान के इलाके में जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, टीचर ऐसे ही अपॉइंट किए जाएंगे जिनको भोजपुरी आती हो, यानी उसी इलाके के लोग। उसी तरह से सारे हिंदुस्तान के लिए। देन परसेप्शन अबाउट स्कूलिंग, ये भी अपना तो एक नया ट्रेंड, ये बिल्कुल नई चीज बता रहा हूँ, नई चीज है आजकल एक नई चीज देखने को मिल रही है, परसेप्शन अबाउट स्कूलिंग। कुछ लोग मानते लगे हैं कि अब सारा स्कूलिंग जो है इररिलेवेंट हो गया, फॉरेन टू देयर लाइफ्स। कुछ बहुत ही गिनी चुनी फैमिली है, नंबर्स भी, आप नंबर तो बता नहीं सकता मैं, मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही गिनती के लोग होंगे अभी देखा जाए तो जो इस तरह की फिलॉसफी रखते हैं। मैं अभी एक क्लास ले रहा था, एमए की क्लास हमारी थी, तो हमारे एक स्टूडेंट ने इस बात को शेयर किया था। बेसिकली हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ज़ाती तौर पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन जो कुछ उसने बताया वह ना, उसने अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी से उसने एक प्रोग्राम किया था, और हमारे यहाँ पे वो पीएचडी में इनरोल हुआ है अभी। वो शेयर एमए एजुकेशन करने के बाद पीएचडी में इनरोल हुआ, वो बता अपना एक्सपीरियंस। ये सर एक नया कॉन्सेप्ट है, डी स्कूलिंग सोसाइटी और होम स्कूलिंग। डी स्कूलिंग सोसाइटी तो इवान इलिच का कॉन्सेप्ट था जो बहुत पुराना है, लेकिन ये जो होम स्कूलिंग बेसिकली उससे मिलता जुलता है। होम स्कूलिंग, ये जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग, हाई क्लास सोसाइटी जिनके पास देयर इज प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, जिनको पैसे की कमी है ही नहीं, जो साइंस टीचर, जो मैथ टीचर, जो आपको सोशल साइंस का टीचर हो, जो लैंग्वेज का टीचर हो, जो पेंटिंग का टीचर हो, जो फाइन आर्ट का टीचर हो, स्कूल में पढ़ाता है, हम उस टीचर को हायर कर सकते हैं अपने घर पे। घर पे हम पूरा करिकुलम, पूरा का पूरा सिलेबस हम जो है प्राइवेट ट्यूशन के थ्रू पढ़ा सकते हैं, ऐसे की कमी है ही नहीं। बच्चे को भेजते हैं स्कूल तो वो गाली सीख के आ रहा है स्कूल से, एक अलग तरह का कल्चर वो सीख के आ रहा है, जो कल्चर हम सिखाना नहीं चाहते हैं। हम अपने बच्चे को मिक्सअप नहीं होने देना चाहते हैं इस तरह के कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों से। तो अब ये शुरू हुआ है कि होम स्कूलिंग, यानी कि स्कूलिंग जो है बच्चे की आप घर में पढ़ाइए, और फिर अपना 10वीं का बोर्ड दिलवा दीजिए आप इसी स्कूल से।
फिर कॉलेज में एंट्री, 12वीं 11वीं 12वीं करा करके कॉलेज में एंट्री करा दीजिए। हायर एजुकेशन के लिए अफ्रीका, जापान, कनाडा भेज रहे हैं लोग। होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये परसेप्शन अबाउट स्कूलिंग जो है, ये भी अपना आप में थ्रेट है, अपना आप में। इसको भी ठीक करने की जरूरत है कि स्कूल को जॉन डुई ने कहा था, स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी। स्कूल एक छोटा सा समाज है, और बच्चे स्कूल में कल्चर से, एक कल्चरेशन का जो प्रोसेस है वहीं से शुरू होता है, घर के बारे में। The students need to learn how to live together, how to work together, how to cooperate, how to coordinate, how to learn and let learn others. वो सारी के सारी चीजें, learning to be, learning to learn, learning to live together, वो सारी की चीजें वही सीखते हैं बच्चे। ये तो बैरियर्स। देन पॉलिसीज टू ब्रेक, ये जो बैरियर्स है, जो लैक ऑफ एक्सेस है, पॉवर्टी है, सोशल नॉर्म्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, इन सारे बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए बहुत सारी प्रोग्राम्स जो हिंदुस्तान में, बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो गए, कुछ चल रहे हैं, बहुत सारे, कुछ चले और बंद भी हो गए। इसमें राइट आरपी प्रोविजन जो हम अभी भी फंक्शनल है, राइट टू एजुकेशन हमने ऑलरेडी जिक्र कर दिया है इसका प्रोविजन, जिसने पूरे के पूरे तस्वीर बदल दी प्राइमरी एजुकेशन की, बेसिकली मिडिल एजुकेशन की तस्वीर ही बदल दी। हालांकि इसके लिए फाइट बहुत करना पड़ा है ना, एजुकेशन एक्टिविस्ट को, लेकिन पूरी तस्वीर बदल दी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम अगर आपने नहीं सुना हो, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बेस पे वो था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 87, 88, 88, 89, 89, 90 में शुरू हुआ था। हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 क्लासरूम हो, एक हेड मास्टर के लिए ऑफिस हो, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड हो, एक बॉयज और गर्ल्स के लिए टॉयलेट अलग अलग हो, साइंस का किट हो, मैथमेटिक्स का किट हो, बहुत सारे स्कीम हो सकते हैं। अभी जो मैंने बात कर रहा था मिड डे मील स्कीम और सर्व शिक्षा अभियान जो अभी भी चल रहा है, समग्र शिक्षा अभियान के नाम से, दिस हैज चेंज द इंटायर स्कूल एजुकेशन ऑफ द कंट्री। हाँ, यहाँ पर एक सवाल जरूर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो चीजें, एक तो होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। स्कूल एजुकेशन की क्वांटिटी को तो चेंज कर दिया। जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो एक्सेस है, इनरोलमेंट है, पूरा हो गया। मैंने इशारा भी किया, तो एक्सेस 100% है आज के, इनरोलमेंट ऑलमोस्ट स्कूल एजुकेशन में तकरीबन 100% है। रिटेंशन भी अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी ड्रॉप आउट है। लेकिन क्वालिटी कहाँ से आएगी? पार्टिसिपेशन के थ्रू क्वालिटी आएगी। लर्निंग आउटकम्स कैसे अचीव होगा? पार्टिसिपेशन के थ्रू अचीव होगा। तो एजुकेशन क्वांटिटी को तो बढ़ा दिया हमने, स्कूल को बढ़ा दिया, टीचर को बढ़ा दिया। अब बच्चे को 1 किलोमीटर ज्यादा नहीं जाना पड़ता प्राइमरी स्कूल के लिए, 3 किलोमीटर ज्यादा नहीं जाना पड़ता मिडिल स्कूल के लिए, और हाई स्कूल के लिए 5 किलोमीटर ज्यादा नहीं जाना पड़ता। ये सारी चीजें हैं। तो वी हैव नो अचीव द नंबर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, द प्रोविजन एंड द एक्सेस ऑफ द स्कूल इज देयर, बट what about the quality of education? What about the quality of teaching and quality of learning? What about the skills which have been developed in the learner? वो अपने आप में एक सवाल है। उस पर हम तमाम टीचर्स को काम करने की जरूरत है। हम तमाम टीचर्स को एक बहुत बड़ा एक, मैं अभी अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, वो ये कि हायर एजुकेशन को और स्कूल एजुकेशन के बीच में एक ब्रिज भी होना चाहिए। हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के बीच में एक ब्रिज होना चाहिए, दोनों को लिंक करने का काम किया जाना चाहिए। और गाहे वक्तन फवक्तन हायर एजुकेशन के टीचर्स को, है ना, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर को, खासतौर पे टीचर्स को अपने पास के स्कूल में जा करके बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए कभी कभार, और उनको मोटिवेट भी करना चाहिए, और उनको इन्वाइट भी करना चाहिए, उनके फ्यूचर उनको दिखाना चाहिए। उससे उनकी गाँव की गाइडेंस भी होगी, उनकी काउंसलिंग होगी, उनका मोटिवेशन भी रहेगा, और उनके सामने एक मॉडल के तौर पर पेश। एक ही टीचर से पढ़ते सब आदमी बोर भी हो जाए। एंड दिस कैन बी डन वेरी इजीली, जो अभी हिंदुस्तान में प्रोविजन है ही नहीं। हमें लगता है कि शायद ये अगर हम कर सके तो बहुत अच्छा हो, और हो सकता है कभी ये चीज निकल के आए और कभी ये काम करे। तो बहरहाल मिड डे मील स्कीम और ऐसे ये भी आपको जो पॉलिसी। देन टीचिंग लर्निंग इन एमटी, मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, मैंने ऑलरेडी बता दिया, डिस्कस कर लिया, इसमें भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। देन अवेयरनेस कैंपेन एंड स्कैटर्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम ऑल पॉकेट्स। ये देखिए, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टू सेंसिटाइज पीपल टुवर्ड्स द रियल बेनिफिट ऑफ लर्निंग।
visible to them. Here I want to basically make you understand that inclusion and inclusive setup will be strengthened if people from different section of community, different section of society are enrolled in the mainstream education, and after getting education they are also employed as per their capacity and levels. एम्प्लॉयमेंट उनको मिले। तो जब ये छोटे छोटे जो सोसाइटी के सोशल ग्रुप्स हैं, जो पॉकेट्स हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, अगर उनको लगेगा कि उनके बीच का बच्चा जब वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो इनकम टैक्स ऑफिसर करके काम कर रहा होगा, सेक्रेटरी में जाके काम कर रहा होगा, तो उनके दरमियान का बच्चा जब उठेगा उस एजुकेटिंग के बुनियाद पे और उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो अपने आप मोटिवेट होगा और एजुकेशन की तरफ अपने आप आएगा। ये काम रिजर्वेशन ने किया होगा, लेकिन बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है या नहीं है। उन सबको हमें कहीं ना कहीं खींचने की जरूरत है। तो तमाम सेक्शन ऑफ सोसाइटी से प्रोफेशनल को ले लीजिए आप, एक हम लोग देखते हैं आमतौर पे एक रिक्शे वाला का बेटा IAS ऑफिसर बन जाता है तो तमाम रिक्शे वाले का सीन आपको चढ़ा जाता है। हर रिक्शे वाला सोचते लगता है कि हम अभी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। ऑटो वाला के बच्चे तो कामयाब होता है, तमाम ऑटो वाले फख्र महसूस करते हैं और उनकी हिम्मत बढ़ती है, वो भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसलिए एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज, ये सारी की सारी चीजें जो है वो स्कैटर्ड में होनी चाहिए, तमाम सेक्शन को जाना चाहिए, जिससे कि टोटल बूस्ट मिलेगा पूरी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और हिंदुस्तान के तमाम सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी उन्हीं के दरमियान का बच्चा कामयाब होते हुए नजर आएगा। तो उनका अब लेवल आप सोच सकते हैं, लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या होगा, बच्चे का भी, पेरेंट का भी, सोसाइटी का भी, कम्युनिटी का भी, हाँ, पूरा का पूरा अपलिफ्टमेंट। तो ये चीज अब मैं थोड़ा शेयर करता हूँ सक्सेसफुल प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए हिंदुस्तान में चलाई गई हैं, जो चल रही हैं बहुत सारी, है ना, आज बहुत कामयाब रही हैं। इसने बहुत कुछ चेंज किया हिंदुस्तान। तो सबसे पहला दिमाग मैं शेयर कर रहा हूँ तो KGBV, हमने इशारा किया था आपको, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की एक स्कीम है। हकीकत में दिस KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैज बीन द पार्ट ऑफ बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान का पार्ट। और जैसा कि हमने शुरू में बताया, हिंदुस्तान में हम जब बात करते हैं 70s की, 80s की, 60s की, इवन की हम जब बात करते हैं 90s में, तो गर्ल्स एजुकेशन की हालत बहुत खराब रही हिंदुस्तान, बहुत खराब, है ना। अभी भी प्रोपोर्शन के मामले में पीछे हैं गर्ल्स, नंबर्स के मामले में, एडमिशन के मामले में, नंबर्स के मामले में पीछे। रिजल्ट उनका अच्छा है ना, जो हमको पता चलता है CBSE के बोर्ड के रिजल्ट से, ICSE के बोर्ड के रिजल्ट से, केंद्रीय विद्यालय के बोर्ड के रिजल्ट से पता चलता है। So the overall performance of the girls are much better than the boys, लेकिन total enrollment is less। तो KGBV का बहुत बड़ा इसमें एक रोल रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इसलिए ओपन किया गया था कि हिंदुस्तान में जो लड़कियों की तालीम जो बैकवर्ड पिछड़ी हुई है गर्ल्स में, और खासतौर पर वो गर्ल्स जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के तहत आते हैं, जो ये आज का टर्म में NEP 2020 कहता है, CDGs, पहले जिसको कहते थे SC हैं, STs हैं, माइनॉरिटीज हैं, इस तरह के मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो उनको जो अपने लड़कों को स्कूल भेजते नहीं है पढ़ाने के लिए, गुर्बती की वजह से या कल्चरल इश्यूज की वजह से, सोशल इश्यूज की वजह से, तो युवा के लिए गर्ल्स के लिए स्पेशल बनाओ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम से स्कूल खोला गया, पूरे हिंदुस्तान में खोला, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हर एक ब्लॉक में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आज 2024 में एग्जिस्ट करता है। और ये टारगेट बहुत पहले अचीव कर दिया, बहुत पहले। हम लोग जब जाते थे 2007 से 2012, जो मैंने बताया आपको, 17 तक जाते थे, तो हम लोग हर जहाँ जाते थे, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, उस डिस्ट्रिक्ट के में से भी सैंपल बनाते थे, कुछ सैंपल कि हम KGBV को भी विजिट करते थे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को जाया करते थे। और आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यूज्ड टू बी एक्सीलेंट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा इस सिलसिले में, लड़कियों को देखा काम करते हुए, पढ़ते हुए, है ना, और तमाम तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, वो देखा कई सारे हंड्रेड्स ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। और मैं आपको एक एपिसोड भी शेयर करूंगा आपके साथ उस KGBV का। तो हम लोग जाते थे, तकरीबन एक हफ्ते का विजिट हुआ करता था,
और पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अब एक पूरी टीम एजुकेशन ऑफिसर साथ में रहते थे, उसके ऑफिस के एक दो लोग और साथ में रहते थे। रैंडम हम लोग विजिट करते थे स्कूल्स का, केजीबीवीज का, तो और जाके देखते थे। केजीबीवी में जाते थे तो तमाम, तो उसके केजीबीवी के अंदर आपको शायद पता होगा कि ये जो केजीबीवी होता है वो ब्लॉक, हर ब्लॉक में एक है, किसी न किसी मिडिल स्कूल से एसोसिएटेड होता था। उसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसमें एक प्रोविजन एससी, एसटीज, ओबीसी, और ओबीसी तो मेरे ख्याल में नहीं है, एससी, एसटीज, माइनॉरिटीज और इस तरह के बैकवर्ड क्लासेस के लिए, खासतौर पर गर्ल्स के लिए वो है। और उनको बल्कि सिर्फ एडमिशन करना होता है, कोई फीस नहीं है, कोई खाना पीने का कोई पैसा नहीं देना है, कपड़े लत्ते का पैसा नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है पेरेंट्स को। वहीं आप रहेंगी, वहीं पढ़ेंगी, वहीं आपको रहना। वो छठी, सातवीं, आठवीं क्लास तक, आठवीं क्लास तक होता है। छठी क्लास से शुरू होता था, आठवीं तक होता था, ये बताओ, पहले से पांचवीं तक नहीं। लेकिन वो बच्चियां जिन्होंने कभी स्कूल गई नहीं है और वो उनकी एज हो गई है, मान लीजिए कि 12 साल, तो 12 साल की बच्ची तो पहले क्लास में जाएगी नहीं, तो उनको, उनके लिए ब्रिज कोर्स होता है। ब्रिज कोर्स करा करके उसको छठी के लायक बनाया जाए, है ना, और फिर उसको छठी क्लास में दाखिला दिया जाए, फिर केजीबीवी में। और पास वाले मिडिल स्कूल में जहाँ से उनका अटैचमेंट होता था, उस दिन में वहां जाती थी स्कूल में, स्कूल के आवर्स के बाद अपना केजीबीवी में आ गई। तो केजीबीवी भी इज बेसिकली रेसिडेंशियल स्कूल अप टू क्लास 8, तब था आपकी तरफ से। और वो लड़कियां बहुत ही जो है, जाहिर सी बात है, उनका बिल्कुल ही एक अलग माहौल होता है। वहाँ 5-6 वार्डन होती थी, खाना पीना सब मिल रहा है, साबुन तेल सब मिल रहा है, खेलने के लिए सारा सामान है, बहुत सारे एक्टिविटीज हो रही हैं, सिलाई कढ़ाई का सिखाने का इंतजाम है ना, फाइन आर्ट वगैरह का, फिर वगैरह का इंतजाम है। ये बच्चों को जो हुनर घर पे सिखाते हैं, पेरेंट्स सिखाना चाहते हैं, उससे बेहतर इंतजाम। तो दे वेर वेरी हैप्पी, द परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट। कई सारे केजीबीवी में गया तो बच्चे कुछ सिंगिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ग्रुप सॉन्ग हो रहा है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ अलग अलग इलाके में कहीं सरहुल के मौके पर जो गीत होता है, किसानों का जो गीत होता है, या फिर कब कोई गेस्ट आता है तो उसको आप वेलकम करते हो, तो डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम दे वर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज। और जब उसको देखा गया, जब मैंने देखा, और हमने क्या, बहुत लोगों ने जो भी इस टीम के मेंबर थे, क्योंकि ऑल इंडिया मॉनिटरिंग थी, तो ऑल वे यूज्ड टू हैव ये बच्चियां जो एक ऐसी सोसाइटी से, ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है, जो बिल्कुल ही पहले एक एक्सट्रोवर्ट, बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट थी, जो बात नहीं कर सकती थी। नाउ दे आर सो इंटरेक्टिव and presenting a very brilliant program. So the performance of the girls were excellent in terms of their academic achievement, their skill development, their participation, and their communication skill and all that. अब बता रहा हूँ क्या, ये बात तकरीबन मेरे ख्याल में 2013-14 की बात होगी, एक्सेप्ट याद नहीं मुझे। In one of the KGBVs, I was returning after monitoring process. When I reached at the exit gate, I was told by the education officer that some of the girls want to meet. हालांकि हम मिल चुके थे, सबसे बच्चों से मिले थे हॉल के अंदर, उनका प्रोग्राम भी देखा था, उस वक्त उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन बहरहाल बाद में उन्होंने अपने वार्डन से कहा कि सर से कुछ बात करना चाहते हैं, पूछा होगा, वापस गए हम लोग सब साथ। और those girls were sitting at their तख्त पर लगा हुआ था, एक डेस्क टाइप का, तो चौकी जिसको कहते हैं हम लोग आम करके, raised surface, and they were the students of class 8th school, तो छठी, सातवीं और आठवीं में। So it was a kind of demand was put to me. उन लड़कियों ने कहा कि सर, हम लोग यहाँ 3 साल से हैं, हम में से कुछ तो 5 साल से हैं, 4-5 साल से हो गए, लेकिन हम 8वीं का एग्जाम होने वाला है, अब 8वीं हमारी हो जाएगी तो हम घर चले जाएंगे, घर हमको भेज दिया जाएगा, और जब हम घर जाएंगे सर, तो हमारी शादी करा दी जाएगी या हमें घर बैठा दिया जाएगा। हमारे जो परिवार के लोग हैं वो हमारा एडमिशन कराएंगे नहीं 9th में, और हम आगे पढ़ना चाहते हैं, हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को आप 10वीं तक करा दीजिए, ये रिक्वेस्ट। So everyone was happy. I was so happy. I came back to Delhi, submitted the report to the ministry, and fortunately, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya was, elevated to class 10. So, out of all the programs under Samarth Shiksha Abhiyan, I think the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya is the most important and the heart of the entire educational activities, educational programs, for the upliftment of the basically downtrodden society and for inclusive education, inclusive sector.
इसके अलावा बहुत सारी स्कीम, लाडली स्कीम है जो चल रही है दिल्ली वगैरह में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पूरा आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है. सो दीज schemes have brought brilliant changes in the society in terms of inclusion. लड़कियों की खास तौर पे, है ना. आपने वो कई सारे कुछ स्टेट्स में लड़कियों को साइकिल दिया गया, और साइकिल पे सवार होकर के बच्चियां स्कूल जा रही है. वो बोल्ड, कुछ में जूडो कराटो का आपको कराटो जो है ट्रेनिंग दी जा रही है. बहुत सारे कैश ट्रांसफर और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं लड़कियों को, गर्ल्स को, चिल्ड्रन को स्कूलों में अंदर. तो ऑल दीज and several schemes for the upliftment of betterment of education of children and especially girls also have brought a big change in the entire scenario of education. तो उनका इंक्लूजन बढ़ा है, ओवरऑल इंक्लूजन बढ़ा है. तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स है और भी लाई जा सकती है. बहुत सारी स्कीम चल रही है, तो इससे बहुत सारी तब्दीलियां हो रही है और होती है. इसके अलावा NEP 2020 ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की बात की है ना. बेसिकली सोशियो जो है स्पेशल एजुकेशनल जोन की बात. एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का टर्म तो पहले से है यहाँ, जो सर्वसम्मत शिक्षा अभियान का पार्ट है. पूरे हिंदुस्तान के हर एक स्टेट के अंदर, इन ऑल द स्टेट्स, गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वे डायरेक्टेड बाय द सेंटर टू चूज टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट्स व्हिच आर एजुकेशनली बैकवर्ड and develop a policy specifically for upliftment of education in those districts. तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहलाते थे. वो हर स्टेट, बिहार के, यूपी के और राजस्थान के हर एक स्टेट का अपना था. उसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, इस तरह के कई सारे कुछ स्टेट्स में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड, काफी सारे. NEP 2020 ने इसको ट्रांसफॉर्म करके एक स्कीम, एक पॉलिसी बनाई, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाई. इस तरह के जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, जो एजुकेशनल बैकवर्ड, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर बताओ आपको, बिहार का इलाका है अररिया ना, कटिहार, किशनगंज, है ना, वो सारे इलाके हैं, वो सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के पार्ट. राजस्थान में चले जाइए आप, बहुत सारा पूरा पॉकेट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, चले जाइए आप. तो एक स्पेशल, जैसे इकोनॉमिक जोन हुआ करता था, एक गवर्नमेंट ने बनाया था, उसी तरह से स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की बात है, जहाँ पर कि बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी, स्कूल्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे फैसिलिटीज होंगी, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, बहुत सारी स्कीम चलेगी, और उन पूरे इलाके को, वहाँ के बच्चों को तो पूरी तरीके से आगे बढ़ने का, एडवांसमेंट का उनको मौका दिया जाएगा. वो सारे के सारे मेजर सजेस्टेड इन द NEP 2020. और भी क्या क्या सजेशन है? मेक एडमिशन प्रोसेस मोर इंक्लूसिव. एडमिशन प्रोसेस को इंक्लूसिव बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव एजुकेशन एडमिशन का प्रोसेस, स्कूल के अंदर भी, यूनिवर्सिटी के अंदर भी. ये CUET का जो प्रोसेस है, इंक्लूसिव बनाने के लिए, एक इंक्लूसिव अपने आप में हो जाए, आपको ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जाएगा. मौका भी आपको मिल रहा है. ऐसा नहीं कि एक बार टेस्ट दे दिया तो फिर आप छूट गया तो छूट गया. CUET वगैरह आप दीजिए, और आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज को आप ऑप्ट कर सकते हो, कहीं भी आप एडमिशन दे सकते हो मेरिट के हिसाब से. वो मेक द करिकुलम मोर इंक्लूसिव. करिकुलम को भी बनाया जाए इंक्लूसिव. करिकुलम ऐसा ना हो कि किसी खास सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चों या उसकी कल्चर या उसकी जो है कन्वेंशन और ट्रेडिशंस को ज्यादा बताता हो, आप उसको छोड़ दे रहा हो. तो करिकुलम भी इंक्लूसिव होना चाहिए, ताकि हर तबके का बच्चा, हर समाज का, हर कम्युनिटी का बच्चा जब उस किताब को पढ़े, उस सिलेबस को पढ़े, उस टेक्स्ट को पढ़े, तो उसको अपने आप से जुड़ा हुआ पाए, अपने आप से जुड़ा हुआ पाएगा, तो ज्यादा मजा आएगा, तो ज्यादा मजा आएगा, है ना. ये चीज पहले हम लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, जब बहुत पहले की बात है, तो आमतौर पे जो किताबें होती थी, टेक्स्ट बुक स्टेट की या NCERT वगैरह की, तो देखा होगा बहुत सारे लड़कों का नाम ज्यादा हुआ करता था एग्जाम, है ना. राम एक काम को 8 दिन में करता है, श्याम एक उसी काम को 12 दिन में करता है, तो राम श्याम दोनों मिलकर करेंगे, कितने दिन में करेंगे. ये लड़कों का नाम ज्यादा, जेंडर बायस्ड. तो बाद में फिर डिस्कशन हुआ, डिलिब्रेशन हुआ, इंक्लूसिव बनाओ, तो जेंडर बायस को खत्म किया गया. अब उसमें लड़के का नाम भी मिलेगा, लड़की का नाम भी मिलेगा, है ना. अब जो NCERT ने उसका नाम ही, साइंस की किताब में तो वो उन्होंने नाम दिया है कि बूझो और पहेली के नाम से, पूरी किताब में बूझो और पहेली. ना ये लड़का है ना ये लड़की है, कुछ नाम ऐसा रख दिया. जेंडर इशू को खत्म कर दिया, जेंडर बायस को खत्म कर दिया. सो द लर्नर्स, द स्टूडेंट्स मस्ट बी इन द पोजीशन टू इंटीग्रेट द टेक्स्ट विथ हिज ओन बैकग्राउंड. कुछ ऐसा लगे तो करिकुलम और पूरा का पूरा सिलेबस देन डेवलप रिच कोर्स फॉर ACDG स्टूडेंट, सोशियो इकोनॉमिकली
डिसएडवांटेज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, वो जब स्कूल में आ रहे हैं 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, या किसी भी क्लास में, किसी नए स्कूल में, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। किसी को लैंग्वेज का बैरियर आता है, नहीं, किसी को किसी और तरह का बैरियर हो सकता है, तो उसके लिए ब्रिज कोर्स बनाया जाता है। किसी का बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं, अच्छा नहीं है, इसका रूट अच्छा नहीं है, इसका रूट्स का मतलब यह है कि बेसिक नॉलेज उसकी नहीं है, फाउंडेशन उसका कमजोर है, उसको ब्रिज करो, उसके लिए ब्रिज कोर्स को डेवलप किया जाए ताकि वो मिनिस्ट्री हो पाए, हमसे मिक्सअप हो पाए और फिर आगे की तरफ बढ़ पाए। ये अपॉर्चुनिटी उसको देनी चाहिए। ये नीति का सजेशन। इंश्योर सेंसिटाइजेशन ऑफ फैकल्टी, counselors and students on the gender identity issues and its inclusion in all aspects of the higher education institution, including curriculum. ये जो प्रोग्राम चल रहा है, जो अभी शाकिर साहब ने अनाउंस किया कि 20वां प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि मैं लगातार तकरीबन 20 प्रोग्राम कर रहा हूँ, और पूरे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे एकेडमिक स्टाफ वाले जितने भी पूरे हिंदुस्तान में है, मदन मोहन मालवीय है ना, टीचिंग सेंटर, तो वो सब चला रहे प्रोग्राम। ये पर यही चीज है जो इस प्लान के अंदर सेंसिटाइज करना है फैकल्टी को एनईपी से। Okay, good evening. Assalamu alaikum, Professor Jasim Saab. Assalamu alaikum, Dr. Shakir. This is Dr. Faiza here at the HRD Center. We want to thank you for your session, and I believe Dr. Shakir has plans of a valedictory now. So, yes, I think. I'm very sorry, Professor Faiza. I totally forgot that the session was up to 7:30. Sir, you were so engrossed in teaching learning that just this is your. As Professor Faiza started to speak out, I thought, why Professor Faiza has interrupted? There must be some problem. And then I'm looking at the time, and the time is 7:43. I'm very sorry. Actually, I myself got completely engrossed listening to you. I had joined for the valedictory at 7:30, but then these 10-12 minutes, your discourse was so interesting. I didn't have the courage to interrupt, but it's just that because the participants have to do one MCQ also today. Yes. Yeah, MCQ also today. I'm very sorry. Okay, thank you. We will request you to wind up, sir, and sure, Dr. sure. Shakir will. Yes, we will take मेरे your ख्याल में हमारे ख्याल में लगता है कि इस स्टेज में सवाल के लिए इनवाइट करना मुनासिब नहीं होगा, है ना। अगर किसी का कोई सवाल हो तो हमारा ईमेल आईडी ले लीजिए आप डॉक्टर शाकिर से, एंड यू कैन कम्युनिकेट विद मी एट माय ईमेल आईडी और व्हाट्सएप। सो आई एम वेरी सॉरी, आपके जो भी इख्तितामी कलिमात हों, हम जरूर उनसे फैज़याब होंगे। और इसके बाद आज हमारा ये इख्तितामी इजलास है दरअसल, तो उसको फिर जी शुक्रिया बहुत। थैंक यू सो मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। Thank you, Jasim sir. Thank you for your wonderful session. Participants, without break, we are starting our valedictory session. As you already know that it is already 7:47 right now. So, with the kind permission of our Honorable Director, Madam. Ma'am, can we start, ma'am? Yes, please, Dr. Shakir. I'm very eager to listen to the participants' views and their feedback, and that's why I'm here. It's really important. Yeah, please, let's go ahead. Participants, I once again welcome you all in this valedictory session of our 8 days online orientation and sensitization program. We are also eager to listen to you, ma'am. We are waiting for your address also. But ma'am, participants, ma'am has always instructed us that we must take feedback from you so that we can improve our future programs. So as per ma'am's instructions, we have asked for few names, and 4 names have come from the participants. So I would request one by one. First, I would request Dr. Priyanka Ghai, ma'am. Ma'am, you can give us feedback. Priyanka Ghai, ma'am, is teaching in Amethi Law School, Noida, in Amethi University, UP. Yes, Priyanka, ma'am. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much, Professor ma'am. It was very nice to be addressed by you in inaugural also. Now have to meet you in the valedictory. Shakir sir, you have been a very good guide throughout the sessions with us. The sessions were very interactive. It was, we have learned a lot. I would say the speakers were very good. And with the speakers, I am also fond of my co-students, I would say, because the intellectual questions they have asked, I have learned a lot from many of the participants also.
Baby Ritu ma'am was always very interactive in the sessions. Her questions, Yogesh sir was there. His questions were very intellectual, and uh, this FDP has been very valuable for us. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your kind words. Now, another participants we have with us for feedback is Dr. Somalia Ghosh, ma'am. Sir, Somalia Ghosh, sir. Yes, sir. Uh, Sorry, sir. Good With evening, sir. University of Kalyani, West And Bengal. yes, sir. Good evening, sir. First of all, I would like to thank for giving us the opportunity to participate in such a NEP orientation program. Sir, from the first day we have means I have actively participated in the program, but I think two or three lectures are particularly very important. One was by Professor Mirza Asmer Beg sir, how and where sir has taught about that how there must be an interconnection between a student and a teacher, and in order to be a good academician, a good learner, how we need to give up our narrow identity, and we need to work for the nation, because the priority of the nation should come first before any other consideration. Now, sir, apart from this, particularly, I'm thankful for the this last session, because the two sessions which we have done, it's one of the means the most important session of this NEP orientation, because in the first step we had been taught the actually we had been given a wider ocean of the knowledge through the how we can develop our curriculum through using various apps. So first of all we can do that, and after that we can say in the last session, that today's last session, the sir has taught the inclusive education also, and where we can say that the way sir has taught us, actually it is very important for us to to keep this mind that the education should be access to all and each and every section of the people, and education is the only weapon through which we can create a new order, a new social order, where every child can say that I am the stakeholder in the formation of a nation. Thank you, sir, for all this. And just, sir, one thing I just want to add that during this time, there is no program on the gender issues. Sir, I think NEP has also talked about some gender orientation program, like gender issues. So I think there is no lecture on the gender on uh, the particularly, sir, regarding the gender issue. Though we have touched the education, we have touched inclusive education, but sir, gender sensitive education, that part to some extent has been missing, sir. Thank you, sir. Okay, Dr. Somalia Goji, and I have noted your suggestion. In future programs, we will try to include that also. Thank you, Although sir. we have, ma'am has already included one of the important sessions, inclusive education, where sir was talking about gender issues and all. Yes, sir. But we will Yes, sir. be keeping that also, and we will request our Dr. Faizan ma'am, our honorable director ma'am, to include one more session of gender issues. Now, another participants, baby Ritu Phukan ma'am. Yes, ma'am. Ma'am was very sincere, very actively listening the resource persons, and very attentive also. Ma'am, yes, your Thank feedback you. matters a lot. Yes, ma'am. Thank you, sir. Good evening um, to everyone here. Um, it's really an honor to speak before you after what has been an immensely enriching and enlightening experience at the NEP sensitization program. In fact, over the past 8 days, we have immersed ourselves in the profound vision and transformative goals of the national education policy. And first and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to the organizers and facilitators of this program. In fact, the dedication, the expertise, and the passion of the resource persons have been truly inspiring, and they have really guided us through the nuances and the intricacies of the NEP with remarkable clarity and insight, in fact.
And throughout this program, we have been enlightened on various aspects of the NEP, which included curriculum, pedagogy, equity and inclusion. But like Somalia sir has just mentioned, maybe if we had a session on the gender issues, it would have been very good. But then anyway, uh, now we come from diverse backgrounds and regions, but then yes, we are united by a common goal, that is to contribute to the betterment of our education system. And as we come to an end of this journey of this sensitization program, we realize that the journey is not really over. It's far from over, in fact. In fact, this is just a beginning. We now have the responsibility, to take what we have learned and implement them in our fields, in our respective fields and communities. And hopefully we will be able to become the catalysts for change. We'll be able to advocate for and also contribute to the education system that would truly reflect the vision and aspirations of the NEP. And hopefully with a collaborative kind of effort, we will be able to have make some significant transformation in our education landscape, and also ensure that every child in our nation receives the education that they deserve. So thank you once again to the organizers and everyone involved in this program. Thank you, Priyanka ma'am, for speaking so kind words, so many kind words about me. In fact, you were also very interactive, and also Somalia Ghoshar, and there was also others. And I also would like to take this opportunity to, kind of mention here that this is the second time that I have been a part of a program with AMU. The first time I had, in fact, attended a refresher course in 2012 in December, and that was organized by the Department of English, and Dr. Rijwan Khan was the course coordinator. So I am very happy to be a part of this session again. Thank you so much for everything. Thank you. Thank you, Dr. Baby Ritu Pukan ma'am from Assam. And ma'am, definitely we expect that you will come for third time also, inshallah, in Views MMTTC Center. Now, the last person for feedback is Dr. Rahul Chauhan from Karnavati University, Ahmedabad, Gujarat. Dr. Rahul Chauhan, sir, for your feedback. Yeah, very good evening. Good evening to all of you. I'm Dr. Rahul Chauhan from Gujarat, Karnataka University, and I joined this program. This is my first program on this NEP, this orientation and refreshment course. And yes, I can say that it was very well organized from the this director. I'm again thankful to the Dr. Faiza and Dr. Mohammed Saki, Department of Education Course Controller, Coordinator. The program was designed like the beginning to the end. That I can see that in initial, it was the first session related to the life skill and entrepreneurship development, and starting from that stage to the end of the how to use the software in the content development and the inclusive the education. So it's somehow very correlated with each session are correlated with each other. So it might be possible that if we are missing one session, then it might be possible in next session we have to check what was the previous. So in all the session, all the speaker was wonderful, and all the speaker has delivered so many good points, which I have already prepared some notes from all the session. That's the key point which I can take from this session and I can use, because I am the I can see that I am the junior professor in front of all of you. So I prepared so many notes from this, and I can definitely use these notes in my classroom and lectures and everywhere. And it was a very nice program. And I can also say that if it is an offline program, then also definitely I will also participate in offline program as well, because it's online, it's wonderful, but in offline I can say it will be more useful and good for the participants as well. Thank you so much, sir, to giving me the opportunity. Thank you, Dr. Rahul Chauhan, sir. All the positive feedback have come from the participants, and one suggestion has come from two participants that there should be one more session on gender issues. We will request ma'am to throw light on that. Ma'am will definitely say something about gender issues, so that will be complete in the session itself. And all the positive things which is coming from participant side is because our leader is very effective, very efficient, and leader is before us, Dr. Faiza Abbasi ma'am. And it is because of ma'am's free hand which she has given to Professor Sajid Jamal sir, who was preparing the schedule also along with ma'am, of course. So thank you, ma'am, for giving us this opportunity, and it is because of you, your support and your faith, we are able to deliver, ma'am. Now I would request ma'am to throw light on the gender issues and
and enlighten us with her kind words, ma'am. Okay, thank you very much, Dr. Shakir, and good evening to all the dear participants of this. Happened to be our 20th NEP orientation sensitization program. We are very glad we could touch this mark, but we couldn't have done it without the support and without the trust that we enjoy from participants from across the country. It is so heartening to see that here we have somebody from Assam, somebody from Gujarat, somebody from close by Delhi, and then here we have a very diverse mix of disciplines, of backgrounds, and of the nature of the framework of institutions from which our participants are coming. The credit goes entirely to your coordinator, Dr. Shakir, to the program coordinator, Professor Sajid, and to all the very, very eminent resource persons who have addressed you during this course. This was a short duration. There were just 2 sessions every day, and that was the maximum that we could have had, given that you're not supposed to take any leave for attending this course. So, in that short duration, if our resource persons, eminent people like Dr. Shakila Madam, eminent people like Professor Abdurrahim Pedwai, who spoke to you, eminent people like Professor Wasim, who spoke to you. He's, of course, from the zoology department, but a scientist of great repute. They could speak to you. Professor Masroor Alam, I think I'm very sure he must have touched a chord or two in everybody's heart with his discourse on environmental conservation. So the fact that our resource persons have been able to motivate you to do something good, which would help our nation accomplish not just its academic mission, but also its social mission, which is the aim of the national education policy, which is the aim of all the transformational reforms that the policy envisions, enunciates, and is edified on, and which is the aim of the institutional development plans that everyone is now in the process of making. So, friends, this is, as I said, a transformational change, a paradigm shift, but it's towards globalization, it's towards internationalization, it's towards future proofing education. And needless to say, that in these times of machine learning, in these times of artificial intelligence, in these times of online teaching learning, of which we are all a part, it is inevitable not to change. We can't resist change, and the national education policy is giving us that framework in which these changes can be brought in the teaching, learning, research, development, and community service that the higher education institutions are supposed to perform. I'm glad some of you have drawn my attention to the lack of a lecture on gender equality. Friends, you would know very well that NEP, orientation sensitization programs, these have a very, very fixed syllabus. There are 8 themes, and we are supposed to cover these 8 themes in 8 days. So we begin with holistic and multidisciplinary education. So, as part of holistic education, constitutional values and constitutional duties, such as gender equality, are covered. And then there are others like ecological conservation, ecological balance, and environmental protection as part of holistic education. Similarly, there are many other themes you would have heard. Eminent people speak to you on academic leadership, governance, and management. Eminent people speak to you on Indian knowledge system, on skill development, on research and development, on ICT, and various other themes. So, as far as possible, we try our best to cover all themes under holistic education. And when I talk about leadership, in my sessions in these courses in other universities, when I talk about leadership, I do touch upon women leadership.
which is very distinct, very unique, and very, very gender specific, I must say. So I wish we had more time today. We could have dwelled upon how the complicated path of a woman in career as well as at home, the balance that she has to strike, and the kind of competition she has to beat, yet she has to face the challenges of maintaining and upholding her femininity, because I'm a woman leader, but I'm very much against giving up my femininity to become a leader and acquire masculine traits because they are aligned with power and they are aligned with rule and they are aligned with leadership. I would like to dispense with my kind of leadership within the ambit of my own femininity. I refuse to budge from that. I would not like to be called a chairman. I would not like to be called sir. I would not like to be called mm, uh, you know, uh, Professor Emeritus, because I know that for me, being a woman, the term is, if not chairwoman, then at least chairperson. Being a woman, I would love to be called a madam, whereas I know even Sabziwala is calling a housewife a madam these days. But I am happy with madam and I would not like to exchange it for sir. And similarly, I know that in order to be excellent in my subject area to the extent that I become an emeritus professor, I better insist on being called an emerita professor instead of an emeritus professor. So these are the challenges for women leadership, and I love to discuss them with my participants and as far as possible in the ambit of academic leadership, governance, and management. We talk about them. So, thank you so much. You are up to write a test. Give an MCQ, your score will be generated. I look forward to issuing your certificates as soon as possible and giving you good grades, because I have seen you all working so hard. It's more than 8 p.m. at night. Still, I can see all of you are still logged in, and all of you are still involved with teaching learning. So make sure both your MCQs have been submitted and your draft certificate would have been circulated amongst you by now. So please give us your correct details on the WhatsApp group. Please share them with us. We will issue you your certificate in the digital mode. When I'm saying digital mode, what I mean to say is that we will give you a code on the WhatsApp group. You can use that code to download your certificate as many times as you want to. As many times as you want to. So in your certificate, in order to make sure that your name is written correctly and your affiliation is spelled correctly and the comma there and the full stop there and the hyphen there that you want to be there is perfect to the T. And you don't need to keep a printout of this because you can download it multiple times. Thank you, participants. Thank you for coming to our online platform. You are most welcome to come to our offline platforms. We would love to have you over. We would love to provide you warm hospitality, for which Aligarh is famous and for which we are always eager to act upon. I once again thank you, Dr. Shakir, for your promptness, for your regularity, for your devotion, for your focus, and certainly for providing the kind of empathetic leadership that was required by the coordinator of this course. Dr. Shakir and I share a very, very long lasting bond, my dear friends. We started our careers together as guest faculty and as good friends, and we're still good friends, I must say. And Dr. Shakir is such a promising young faculty member of the university that a lot of people bank upon him. He's discharging. So, you know, why I'm talking about him is because he has been talking about every resource person with you, but nobody has extolled his virtues till now. So you should know your coordinator well.
He is in the team of the NSS. He is in the team of the Dean Students Welfare. He is also a warden in one of the halls of residence. He is super busy. He's super busy. Plus, he's an asset to the Department of Education, which is a huge department, a lot of teaching, a lot of research, a lot of courses, many beautiful colleagues. But at the same time, I must admit, Dr. Shakir, that you do come across to us here at the UGC MMTTC with all our participants as quite an asset. And I take this opportunity to thank you for that and to request you for your continued cooperation. So thank you, participants. I wish you all the very best with NEP, with your careers, and with your future dreams, aspirations, and life in general. Thank you very much. Please go back to the groups, take your MCQ test, and get a good score. I look forward to giving you a good grade and a wonderful certificate. Congratulations on your success. Take care. Good night. God bless. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Shukriya, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Participants link has been shared in group. Please attempt the second test, which is also mandatory like the first one. Please complete the test today itself. Please, within 30 minutes, you have to complete the test. Please complete that. It is very much important. Okay, participant, without this completion of the test, certificate cannot be given to the participant. Please. So do complete this test assessment second. Okay. Now we will meet once again, as ma'am has promised that in the offline or online course, we will meet once again. You can again choose the academic MMTTC Center of